Good evening, sir, and our viewers. Welcome to Euroscope Conversations. I am Prachi Upadhyay, analyst for the Central European region at the Euroscope desk, Global Eye Intelligence. I am also currently pursuing my master's degree in computer science at St. Xavier's College, Kolkata. I am also a civil services aspirant with a strong inclination towards geopolitics and international affairs. And today, our guest of honor is Dr. Kuldeep Verma, Assistant Professor, Department of Defence and Strategic Studies, Hindu College, Moradabad, Government of Uttar Pradesh. Sir is also an external expert at Pandit Sundar Lal Sharma Central Institute of Vocational Education, PSSCIVE, NCERT. Our topic for discussion today is education, security and diplomacy, the new frontiers of India-Europe partnership. In focus today will be headers like education policy, research ecosystem, strategic knowledge partnerships between India and Europe. So firstly, I would like to ask you about your book that you recently wrote, which was on Quest for Strategic Autonomy. So would you like to explain or give us a brief about what exactly is it about? Thank you, Prachi, for giving me this opportunity for that interview. So, first, the book. The book is a strategic autonomy comes from the mind when I'm trying to study Indian defense companies. So I see that there is lots of potential in that in the defense companies, just like HAL and Garden Ridge, Cochin Shipyard, and BL, BHEL. सो दे आर मतलब वो बहुत अच्छा कर रही थी, बट उनके पोटेंशियल को गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से वो नहीं मतलब कैपिटलाइज नहीं किया जा रहा था. तो गवर्नमेंट ने जब 2020 में अपनी डिफेंस पॉलिसी लाई, तो उसके बाद जो DPP आया 2020 आया, तो उसके बाद उन चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे. और सब क्रूशियल पॉइंट दैट जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी उनका जो प्राइवेटाइजेशन, नॉट प्राइवेटाइजेशन, इज समथिंग लाइक कॉर्पोरेटाइजेशन जो किया गया, उसकी वजह से जैसे हमारे पास लगभग 22 के करीब डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, और उनका कॉर्पोरेटाइजेशन करने के बाद जो 7 वो बची, तो उनमें जो पोटेंशियल थे उनको पूरी तरीके से वो गवर्नमेंट के द्वारा वो नहीं किया जाता. हम बहुत एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा थी. देन आई स्टार्ट रीडिंग दैट डिफेंस पॉलिसी, एंड फिर मैंने अपने फ्रेंड दिव्या से बात की, तो देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द लास्ट 6 to 7 decades. And Yes, sir, absolutely. after that, we see that we are now exporter of that defense equipment. There are not so many, but we are doing very great in defense sector. So I want to explore these companies on the different productions, and also the financials of these companies are very good and robust. So I want to study that book, and after that, that book give very good response from the academician and all the students fraternity. तो सर बुक पे फॉलो अप अगर करते हुए आई विल आस्क माय नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपने कहा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन डिफेंस सेक्टर इज somewhat lacking in our country today. The only answer is innovation. That is the biggest gap in our country. The innovation, R&D, research and development. 1958 में जब research and defense research and development पे काम स्टार्ट हुआ था, तो वो कहीं मतलब रास्ता वो अपना भटक गए और सिर्फ बहुत कम चीज़ों पे फोकस कर पाए, और सिर्फ एक लैब, एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डिफेंस पे काम करने के लिए था. DRDO. हमें बहुत मतलब DRDO, और हमें बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की जरूरत थी, जो मतलब शायद उस पर जितना शुरुआत में 1958 में जब शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद हमें उसको और बहुत तेजी से करना चाहिए था, बट वो हो नहीं पाया. किसकी गलती? हम किसी की गलती नहीं सकते हैं. शायद हमारे कल्चरल उसमें रिसर्च एक जो है वो था, वो छूट गया. वो अंग्रेजों की वजह से छूट गया, या फिर किसी और वजह से. ये इस पे तो डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए कि मतलब किस वजह से हमारा जो रिसर्च था वो कमजोर होता गया, मतलब टाइम टू टाइम.
मतलब रिसर्च तो सर वही है कि शुरुआत अच्छी हुई, बट उसके बाद उस पे चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो पाई, सिर्फ मिसाइल डेवलपमेंट पे हुआ। आज भी हम हम्म, जैसे प्लेन्स नहीं बना पाते, फाइटर जेट्स नहीं, उसका कावेरी इंजन पे कितना टेक्नोलॉजी का बर्डन्स भी थे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई दूसरे देशों के द्वारा, यूएस के द्वारा या यूरोप के द्वारा उस समय। एक और एक विचारधारा की भी लड़ाई थी दोनों के, मतलब एक कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, और इन सब की वजह से टेक्नोलॉजी की भी प्रॉब्लम थी। मगर हमने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की और दूसरों पे डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई, चाहे वो रशिया पे हुई हो, चाहे यूरोप पे हुई हो। ये सभी एक एक लैग था, एक गैप था। उसके बाद दूसरा गैप हमारे एजुकेशन सेक्टर में था। जो जो शुरुआत हुई थी उसको हम फोकस नहीं रख पाए अपने रिसर्च एंड इनोवेशन में। इंडियन रिसर्च एंड इनोवेशन वेरी, मतलब वीक इन सेंस ऑफ यस सर। innovation in new technologies. We adopt the foreign technology very clearly and very, मतलब बहुत अच्छे तरीके से दूसरों की टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका पर प्रोटेक्शन स्टार्ट करते इनोवेशन हैं। अपना इनोवेशन हमारा एक लैक है, एक हमारे किस चीज में है, एजुकेशन सेक्टर में है कि हमारे कल्चर में है कि कहाँ पे है, इस पे थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है। बट देखते हैं आगे क्या होता है। बट नाउ डेज दीज कंपनीज आर डूइंग ग्रेट, दीज कंपनीज आर वेरी ओल्ड, but there need a renovation and bureaucracy. I think the biggest problem for India, the they are the bureaucratic red tape in India in education sector and everywhere. This is main problem, I think, for the defense company. They are very capable for the production, but the innovation they are lacking. That is the main problem. So I'll ask my first question, sir. Okay. इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 2020 में आया, Mm-hmm. एंड इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन, और उसमें एक कमीशन की बात हुई थी विच इज HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पर 2020 में आया ये पॉलिसी एंड इट्स 2025 नाउ। अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस या स्कूल्स हैं Mm-hmm. जो इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो लाइक व्हाट डू यू थिंक कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है या इंटेंट का प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स चाहते नहीं है इम्प्लीमेंट करना? बिकॉज डोंट यू थिंक कि द होल पॉइंट ऑफ NEP वाज टू ब्रिंग अबाउट अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा कोर एकेडमिक्स और राइटिंग, रीडिंग, होमवर्क, क्लास वर्क और बहुत ज्यादा एक रिगरस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। जबकि NEP का मेन पॉइंट था कि आप एक होलिस्टिकली एक चाइल्ड को डेवलप करें, उसका क्रिएटिव माइंडसेट डेवलप करें। तो ये तो अभी भी लाइक बहुत कम ही देखने को मिलता है कि एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड्स में सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सारे क्राइटेरिया को भी इवैल्यूएट किया जा रहा है कि बच्चा का पर्सनालिटी कैसा है या उसकी स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। तो what do you assess? How has been Indian education policy like from old ages to now, from 70s 80s era to now? ये कैसा चला है? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, चूंकि मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, एकेडमिया को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, और इससे पहले भी जो मतलब एजुकेशन पॉलिसीज आई उसमें भी वही मेन प्रॉब्लम थी कि इंडिजिनस नॉलेज पे फोकस ना करके हमने एक डिफरेंट तरीके का फॉरेन मॉडल को, एक उसकी अच्छी चीज़ों को ले लिया और उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो हम ये भी देखते हैं कि हमारा कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बीच में फंस गया है। एक अपने नॉलेज जो इंडिजिनस नॉलेज है और एक जो यूरोपियन कॉलोनियल Adopted knowledge है। माइंडसेट था, जो मैकाले का माइंडसेट था, अडॉप्टेड था, या फिर जो भी कह लें उसको, तो उन दोनों के बीच में एक फंस के रह गया है। तो अब हम अगर बात करते हैं जो NEP 2020 आया, डॉक्यूमेंट के लेवल पे तो स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट बहुत सही है, ठीक है, जो हम उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट्स हैं, ओकेशनल इंटीग्रेशन की भी बात की जा रही है। उसके द्वारा अभी जो ANRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, रिसर्च इकोसिस्टम की भी बात की गई है। तो इसको हम दो चीज़ों पे हम देख सकते हैं, एक स्कूल सिस्टम, एक यूनिवर्सिटी सिस्टम।
ठीक है, स्कूल सिस्टम में जो चीज़ें अभी उस पर बहुत ज़्यादा एनईपी को लागू नहीं किया जा सका है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वोकेशनल एजुकेशन की। हम अभी तक दो सी स्ट्रीम्स थी स्कूल सिस्टम में, कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स। हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों में सबको फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है। ठीक है, कि इंजीनियर जिसको बनना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े, या फिर जिसको कॉमर्स पढ़ना है वो कॉमर्स पढ़े, मगर सबको मतलब हर चीज नहीं करनी है कि हमारे पास सिर्फ 3 स्ट्रीम्स हैं और वोकेशनल एजुकेशन का उसमें मतलब कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, अब तक नहीं है। और उसको इम्प्लीमेंटेशन उसमें बात कही गई, मगर 5 साल से हम देखते हैं कि अभी बहुत ज्यादा उस पर काम तो हो नहीं पा रहा है। भारत में सिर्फ एक वोकेशनल का इंस्टीट्यूट है जो करिकुलम डेवलप करता है, वो भी एक भोपाल में, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, उसका डेटा अगर मेरे पास है तो आज तक उस मतलब करिकुलम डेवलपमेंट में उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो थी। ठीक है, मगर जब मैंने एनईपी पे वहां काम कर स्टार्ट किया पिछले 2 सालों में, तो देखता हूं कि बहुत सारी जो करिकुलम डेवलपमेंट वहां पे हो रहे हैं, जो छोटे लेवल की जॉब्स हैं, जो गैप दिखता है जैसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है या फिर बेकिंग की जॉब है, क्योंकि हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर मतलब सीए नहीं बन सकता है। देयर आर लिमिटेड सीट्स देयर, सो एंड एवरीबॉडी डोंट वांट टू दैट लेवल। Yes, absolutely, sir. ठीक है, और हमारे जो मासेस के बीच में जो हमारे स्कूल सिस्टम है वो बहुत डिस्कनेक्ट है, एक ग्रामीण परिवेश में और एक शहरी में, दोनों के बीच में कनेक्शन इतना लंबा गैप है। उसको फुलफिलमेंट के लिए गवर्नमेंट ने शायद ही मतलब कभी ध्यान दिया हो कि एक गवर्नमेंट स्कूल जो छोटे शहरों में गवर्नमेंट स्कूल हैं, या फिर जो मैं उन इंस्टीट्यूट की बात आईआईटी या आईआईएम या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इन सब की यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप में इंडियन सिस्टम में एक उनकी अलग कहानी है। ठीक है, वो गवर्नमेंट फंडेड है, सब कुछ अच्छा है, बट जो लैक है छोटे शहरों के कॉलेजेस में, वहाँ के स्टूडेंट के आईक्यू लेवल में, और उनको सबको डॉक्टर नहीं बनना है। दे डोंट ओनली वांट टू डू देयर जॉब्स, लिमिटेड सैलरी जॉब्स जो वोकेशनल के लेवल पे मिल सकती, मगर एजुकेशन सिस्टम में उन पर ध्यान कभी भी दिया नहीं गया कि कॉलेज का कनेक्शन उनकी लोकल इंडस्ट्रीज से हो। जैसे एक एग्जांपल किसी लोकल इंडस्ट्री, चाहे अलीगढ़ का हम एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ ताले बनते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी, वहाँ की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर वहाँ के छोटे कॉलेजेस ने क्या वोकेशनल के लिए अब तक किया? हम वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशियोलॉजी वही पढ़ा रहे हैं। उनको पढ़ना है, वो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बट साथ में एक वोकेशनल के लिए वो होना चाहिए। 70 years of the independence, there is no vocational education in Indian universities or Indian colleges and anywhere. They learn these skills from from their home, या फिर छोटे मोटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो वहां पे सीख लिया। आईटीआई का कॉन्सेप्ट आया था, बट वो भी बहुत सक्सेस नहीं हुआ। पॉलिटेक्निक का कॉन्सेप्ट आया, मगर वो भी गवर्नमेंट रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में वो बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उसके अच्छे रिजल्ट्स थे, बट एक सिस्टम कहीं ना कहीं लैक था रिसर्च में या फिर समथिंग कहीं पे भी। हाँ, बट एनईपी को मैं एक डॉक्यूमेंट पॉलिसी बहुत स्ट्रक्चरल अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फंड। तो एक सबसे बड़ा लैग इम्प्लीमेंटेशन का आएगा इसमें, क्योंकि 5 years में मैं देखता हूँ कि एनईपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्जाम सिस्टम। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्स एंड Yes, sir. टीचर्स आर बिजी विद ओनली डूइंग एग्जाम्स एंड द स्ट्रक्चर एंड तो गवर्नमेंट को सबसे बड़ी चीज सोचनी चाहिए थी कि छोटे शहरों के कॉलेजेस के कम जो वहाँ पे एक कमी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे एनईपी उन्होंने लागू कर दिया। ठीक है, अभी भी हर जगह 8 स्टेट्स अभी भी जिन्होंने एनईपी नहीं लागू किया अपने कल्चर डाइवर्सिटी की वजह से, या फिर लैंग्वेज बैरियर, तमिलनाडु है, बंगाल है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो पॉलिटिकल प्रेशर में या फिर पॉलिटिकल जो उनकी वो इच्छाएं या फिर विचारधारा के स्तर पर बहुत जगह नहीं लागू किया है। मगर जहाँ पे लागू भी हुआ है वहां पे भी एक ये प्रॉब्लम दिखती है कि लैक ऑफ रिसोर्सेस और एनईपी इज इम्प्लीमेंटेड। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन। हायर एजुकेशन में भी अब हम आते हैं स्कूल सिस्टम भी 2 तरीके का हो गया है। तो एक मतलब एक प्राइवेट स्कूल सिस्टम है जो बहुत अच्छा है,
और जो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम है सिर्फ केवीएस या फिर नवोदय या कुछ छोटे स्कूल, मतलब जो कुछ बढ़िया गवर्नमेंट स्कूलों को छोड़ दें तो गवर्नमेंट स्कूल्स का बहुत बुरा हाल है। तो ये एक लैक है, और वहाँ पे एनईपी को लागू करना तो मतलब एक एक जो गैप हो जाता है कि छोटे शहरों का और बड़े शहरों का, वो बढ़ जा रहा है एनईपी की वजह से। बच्चे ओ, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे इतना एग्जाम देने में नहीं है, और उनको जॉब भी करनी है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो शायद इम्प्लीमेंटेशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत में एक ब्यूरोक्रेटिक टेपिज्म है जो एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। वो ग्राउंड लेवल पे उन चीज़ों को नहीं देख पा रहा है जो होनी चाहिए। लैक ऑफ ऑटोनॉमी है स्कूल सिस्टम में भी। अब जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई सेंट्रल से पॉलिसी बनी एनईपी की, और जी। उसको स्टेट में, स्टेट से फिर स्कूल्स में फिर स्कूल से लेके वहां तक उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो उसके बीच में जो गैप आ जाता है वहां से ऊपर पॉलिसी बना के नीचे इम्प्लीमेंट करने में, वो ग्राउंड हम्म। लेवल की रियलिटीज नहीं जानते हैं कि स्कूलों, प्राइमरी स्कूल्स में क्या हाल है, या फिर प्राइवेट स्कूल्स की अपनी समस्याएं हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फीस, और उनके पास भी रिसोर्सेज की उस तरीके की, मतलब कोई अदर उनके पास इनकम नहीं है जिससे वो उन तरीके का लेवल एनईपी को लागू कर सकें। अब वोकेशनल के लिए हमें लैब्स चाहिए पूरे, हम्म। मगर लैब्स के लिए पैसा चाहिए, और गवर्नमेंट, ना गवर्नमेंट स्कूल के पास पैसा है ना प्राइवेट स्कूल के पास पैसा है, तो वोकेशनल आप लागू कैसे कर देंगे? गवर्नमेंट का प्लान ये है कि अगले 2 साल में हमें वोकेशनल स्कूल स्कूल सिस्टम में लागू कर देना है, बट लैब्स के लिए बजट नहीं है, और लैब्स हैं तो उसके लिए हमारे पास उस तरीके के ह्यूमन रिसोर्स नहीं अवेलेबल है कि जो ट्रेंड ह्यूमन बीइंग है, इंडस्ट्री के बीच में कोलैबोरेशन नहीं है। तो देयर इज ए लॉट्स ऑफ gap in these things. Vocational education for Indian students is very necessary, and if अगर इसको टैकल नहीं किया गया तो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो मुझे दिख रहा है क्योंकि भारत के यूथ इंडस्ट्री के लिए तैयार नहीं है, और खास तौर से इसमें इंडस्ट्री की भी अपनी कमियां हैं। इंडस्ट्री ने अपने वोकेशनल इंस्टीट्यूट कभी नहीं बनाए। उन्होंने हाँ। एक सबसे बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम यही हुई कि उन्होंने अपने जो फंडिंग जिन इंडस्ट्री को देनी चाहिए थी, उन्होंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स तो ले लिया, बट उसको खुद से अपने अकॉर्डिंग ट्रेन कर लिया, मगर उन्होंने एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में उनका रोल बहुत ही छोटा है। मैं कितना, आप तो 2-3 एग्जाम्पल हमें देख सकते हैं, बिट्स पिलानी, ठीक है, या जी। फिर 2-3 साउथ में इंस्टीट्यूट हैं जो प्राइवेट सेक्टर में, टाटा, बस इसके अलावा इंडस्ट्री ने काम ही नहीं किया एजुकेशन सेक्टर में। और जिन्होंने काम किया उसको एक मनी मेकिंग मशीन बनाया। एक, क्योंकि एजुकेशन एंड द दो पेशे थे, एजुकेशन एंड द डॉक्टर, दे आर द एजुकेशन एंड मेडिकल, यस सर। मेडिकल, द नोबल प्रोफेशन, एंड इसमें हमें मतलब फाइनेंस नहीं देखना चाहिए था। और ये प्रॉब्लम हुई हाल, इससे पहले तो मुझे लगता है कि आज़ादी से पहले जो जिनके पास फंडिंग थी, उन्होंने एज ए नोबल कॉज के रूप में बहुत सारे स्कूल्स पे फंडिंग, उसको फाइनेंस के रूप में वो किया। बट आज़ादी के बाद मैं ये देखता हूँ कि ये कमी हमारी इंडस्ट्रीज की तरफ से भी रही, कि उन्होंने एक बहुत पॉइंट तो ये भी हो सकता है ना सर, क्योंकि हमने, इंडिया ने कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे उतना ध्यान ही नहीं दिया। 90s के बाद हम सीधे सर्विस सेक्टर में चले गए, एग्जैक्टली exactly. और मतलब ये हमारा, सबसे बड़ा लैक रहा। इसलिए हाँ, रिसर्च एंड इनोवेशन में हम पीछे रह गए, और रिसर्च एंड इनोवेशन में पीछे रह गए तो हम प्रोडक्शन में पीछे रह गए, मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए। तो और ये रिसर्च का एटमॉस्फेयर ना मिलने की वजह से ही, मतलब जो जॉब क्राइसिस है इंडिया में। अब चाइना ने देखो कितना मतलब डेवलपमेंट किया अपने मैन्युफैक्चरिंग में। एक समय हम जानते हैं कि 2002 या 3 में चाइना का सामान खराब होता है सबको, तो मगर उन्होंने उस हम्म। पर काम किया, और आज चाइना का ही सामान सबसे अच्छा हो गया और सबसे चीप हो गया। और उन्होंने, मतलब उन्होंने बाहर रिसर्च के लिए भी भेजा अपने, उनकी यूनिवर्सिटीज या टॉप 10 यूनिवर्सिटी में उनकी 2-3 यूनिवर्सिटी आती हैं, हम कहीं भी नहीं आते हैं। 4-5 हमारे पास लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं, मगर वो भी अंडर 200। वो भी 100, ठीक यस है, सर। हम इस रैंकिंग को नकार सकते हैं, बहुत सारी रैंकिंग की अपनी कमियां हैं, बट ये हमें दिखता भी तो है रिसर्च में कितना गैप है अपने यहाँ। एक्चुअली सर, रिसर्च की बात करें तो इंडिया कंट्रीब्यूट्स लेस देन 2.5% टू ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी। हम्म। जबकि आप हम स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल देखिए या सदर्न स्टेट्स देखिए, हम्म। आपको मेजरली स्टूडेंट्स अगर देखेंगे तो वो
आपको या तो इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरी परसू करते हुए, या फिर दिल गो फॉर हायर स्टडीज, एमएससी, एमटेक, Yes. पीएचडी. इवन देन वी आर कंट्रीब्यूटिंग सो लेस टू द साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटी. तो आपका इस पे क्या कहना है कि व्हाई आर वी कंट्रीब्यूटिंग सो लेस टू द रिसर्च एरिया? ये क्या हमारा बजट डेफिसिट है, या गवर्नमेंट डिले कर रही है इसमें काम पे? व्हाट डू यू हैव टू से टू द रिसर्च डेफिसिट? देखो, इसके दो चीजें हैं. एक तो फंडिंग का इशू है. सबसे ज़्यादा फंडिंग का, स्कॉलरशिप. सिर्फ हम कितनी स्कॉलरशिप देते हैं? सिर्फ एक यूजीसी की नेट जेआरएफ और सीएसआईआर की नेट जेआरएफ. हमारे पास सिर्फ अभी तक सिर्फ दो स्कॉलरशिप थी. बाकी छोटी मोटी स्कॉलरशिप जो भी हैं वो बहुत लिमिटेड हैं. 100 हैं या 200 हैं. उनमें बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए वो है, ठीक है. मगर हमारे पास मास में हम सिर्फ दो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वो भी 40,000 पर मंथ, ठीक है. इट्स अ वेरी लेस. अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें, साइंस के लिए 40,000 पर मंथ, पीएचडी के लिए मतलब एक अमाउंट बहुत ही कम है. खास ह्यूमैनिटीज के लिए ठीक है, वो वहाँ पे लैब की जरूरत नहीं है, सब कुछ काम चल जाता है, ठीक है. बट एक तो फंडिंग हम अपने पूरे मतलब जो जीडीपी का है 2.5 में भी शायद स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन पे, जिसमें रिसर्च का पोर्शन सबसे कम है. और हमारा जी. हमेशा से इम्प्लीमेंट करने का 6% हम करेंगे. चाइना का हो जाए, यूरोप का हो, सबका लगभग 6 से 10% अपने रिसर्च एंड इनोवेशन पे, अपनी यूनिवर्सिटीज की फंडिंग पे है. तो एक सबसे बड़ा तो गैप हमें जो दिखता है वो रिसर्च एंड इनोवेशन में फंडिंग का दिखता है, जिसमें गवर्नमेंट का लैक है. गवर्नमेंट ने कभी भी फोकस नहीं किया. इवन टुडे वी आर स्पेंडिंग वेरी मच. एंड अगर हम अपनी उसको इन्फ्लेशन से वो करेंगे, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. पीएचडी की स्कॉलरशिप कम होती जा रही हैं. जो नेट की स्कॉलरशिप है वो कम हो. जो दूसरी स्कॉलरशिप थी जो प्रिविलेज क्लास के लिए थे, अंडर प्रिविलेज थे, उनके लिए थी, वो सब खत्म हो रही हैं. तो ये एक लैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो फंडिंग का इशू आ रहा है. तो अगर जो एनआरएफ भले ही हमने मतलब अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन बना दिया हो, उसमें 1 लाख करोड़ की फंडिंग की हम बात कर रहे हैं, बट एक खाली रिसर्च फाउंडेशन बना देने से, या फिर उसको एक टोकनिज्म के नाम पे कि हमने एक नया इंस्टीट्यूट बना दिया, अभी रिसर्च फंडिंग करेगा. हमारे पास ऑलरेडी देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट. दे आर ऑल्सो फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन का कोई एक्चुअल फंड है ही नहीं, क्योंकि हम जो बजट से मिलता है. और दूसरा, इंडस्ट्री के साथ में कोलैबोरेशन ना होने की वजह से जो हम एक इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप है, जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है. मैंने इतना गैप किसी भी मतलब देश में नहीं देखता हूँ कि जो इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में गैप है. क्योंकि एकेडमिया हमारे उनके लिए टैलेंट नहीं डेवलप कर पा रहा है, तो एकेडमिया इन्वेस्ट नहीं कर रहा है उनके पे. सिर्फ 10 इंस्टीट्यूट से भारत का काम नहीं चल रहा है कि हमारे पास 10 इंस्टीट्यूट हैं, एकेडमिया उसी से जुड़ा हुआ है, मतलब इंडस्ट्री उसी से जुड़ी हुई है और उसी में अपना वो देख रही है. तो एक ये गैप है जिस वजह से एक फंडिंग सबसे बड़ा. उसी दूसरा, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रिसर्च कल्चर हमने कभी डेवलप नहीं किया. एक तो द करप्शन इन द रिसर्च इज ऑल्सो ए वेरी मेजर इशू. वो करप्शन क्यों आया है, इस पे तो मुझे लगता है फिर से एक रिसर्च की ज़रूरत है कि एकेडमिया में ये करप्शन कैसे आ गया. उसका एक रीजन मुझे जो दिखता है कि रिसर्च को प्रोफेसर्स का प्रमोशन का क्राइटेरिया बना देना, उनकी ऑटोनॉमी को ख़त्म कर देना. एक जो एक हायर एजुकेशन, मैं स्कूल एजुकेशन पे बहुत नहीं मतलब बोलना चाहूँगा, बट हायर एजुकेशन में मुझे जो दिखता है कि एक जो प्रोफेसर है या एकेडमिशियन है, उसके उसको एक गवर्न किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा. जो एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए एक एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोफेसर के पास, वो एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में, हायरार्किकल सिस्टम में एक फंस के रह गया है. वो इंडिविजुअल, उसकी सोच नहीं डेवलप हो पा रही है, इसलिए वो रिसर्च पेपर को प्लेगराइज कर रहा है या फिर समथिंग. वो एक जैसे एक कल्चरल उसमें इंडियन एकेडमिया में मतलब वो घुस गया है. मतलब वो उसी में सब लगे हुए हैं कि अपना रिसर्च पेपर लिख लें, प्रमोशन हो जाए. तो जब वो प्रमोशन के लिए होगा तो वो वैसे ही करेगा, ठीक है. वो अपनी नीड के लिए नहीं करेगा कि वो अपना खुद का दिमाग डेवलप करे या फिर समथिंग कुछ नया इनोवेटिव करे. तो जहाँ मैं साइंस में भी देखता हूँ, उसमें भी यही है कि प्लेगराइज इसका है, इस लैब का डेटा ले लो, उस लैब का डेटा लेके अपना एक, ठीक है, 2% 3% अच्छा काम हो रहा है, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग 2.5% हमारा सिर्फ हायर इम्पैक्ट रिसर्च में हमारा रूल है.
बट मास क्या कर रहा है, सिर्फ एग्जैक्टली हमारा प्लेगरिज्म। पॉपुलेशन भी तो, हमारा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इतना है उसके हिसाब हाँ, से, उसके हिसाब से हम एंड वी बहुत आर अ कम है। यूथ ड्रिवन ठीक कंट्री। है, कुछ लोग अच्छा काम हमेशा करते हैं, मैं नहीं हम्म। सबको वो नहीं कर रहा हूँ, बट साइंस में भी यही हो रहा है। और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का तो हाल अपने यहाँ, मतलब क्या ही पूछें कि कितना वो है। उसमें प्लेगरिज्म जैसे एक हमारे उसमें आ गया है, मतलब उसका एक पार्ट हो गया है। अच्छा रिसर्च ना सोशल साइंस में अवेलेबल है, क्योंकि अधिकतर सब उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम में बिजी हैं प्रोफेसर्स। और जो क्रिटिकल थिंकिंग थी वो डेवलप नहीं हो पा रही, ब्यूरोक्रेसी का इतना दबाव है कि वो मतलब उसी में लगा रहता है, नंबर्स और एग्जाम्स कराना प्रोफेसर्स की जिम्मेदारी कब से हो गई। ठीक है, एक जिम्मेदारी हो सकती है, बट एक, क्वेश्चन सेट करना प्रोफेसर की जिम्मेदारी हाँ हो जिम्मेदारी सकती है मतलब सर, एग्जाम कंडक्ट एग्जाम करना कंडक्ट करना तो करना नहीं। मतलब। और दूसरा ब्यूरोक्रेसी क्या, कि आप इतने पेपर रिसर्च करेंगे तभी आपका प्रमोशन होगा, तो और दूसरा एक सैलरी का भी इशू है, मतलब कि हम्म। इतना गैप है। एक गेस्ट फैकल्टी है, एक मतलब सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, तो उन दोनों की सैलरी में इतना गैप है, तो वो अपने आप में ही एक वो न्यूसेंस क्रिएट करता है कि एकेडमिया की फील्ड में कोई स्ट्रक्चरल सिस्टम नहीं है, कि मतलब एक ही प्रोफेसर जो गेस्ट फैकल्टी है वो मतलब सिर्फ 20,000 पा रहा है, जो वो है वो 1 लाख पा रहा है, तो दोनों के बीच में गैप है, तो वो 20,000 वाला क्यों वो काम करेगा जो रिसर्च का, क्योंकि उसको तो उससे प्रमोशन मिलना नहीं है। हम्म। तो एक प्रमोशन सिस्टम जो एक सिस्टम में ये फ्लॉज दिखते हैं, जिसपे गवर्नमेंट को मतलब कोर पे काम करना चाहिए, और खास तौर से ऑटोनॉमी को बहुत मतलब बढ़ाना चाहिए, खास तौर से इंस्टीट्यूट में। इंडियन यूनिवर्सिटीज ने अपनी ऑटोनॉमी का भी मिसयूज किया है। ऐसी बात नहीं है कि ऑटोनॉमी अपने आप में बहुत सही है, बट जब स्ट्रक्चरल चीजें बनेंगी तो कुछ ना कुछ गैप आएंगे। तो प्रोफेसर्स की इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, जिससे वो क्रिटिकल थिंकिंग करके मतलब एक नया रिसर्च डेवलप कर सके, खास तौर से साइंस में, स्टेम्स में और सोशल साइंस में। क्योंकि मैं जब देखता हूँ यूरोप में सोशल साइंस पूरा उनका रिसर्च ही सोशल साइंस से रिलेटेड है, जो साइंस पे वो करता है। मगर इंडिया में इतना डिवीजन है साइंस और सोशल साइंस के बीच में, कि हम जैसे वो अलग फील्ड हो गई है, बिल्कुल अलग फील्ड हो गई, तो कोलैबोरेशन है ही नहीं। तो हम साइंस में रिसर्च पेपर डेवलप कर लेंगे, मगर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे बिना हम्म। साइंस, देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, किसी टेक्नोलॉजी का मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है विदाउट सोशल साइंस। और इतना गैप है कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो उसको अपने हमारे लिए बेनिफिशियरी है कि नहीं, उसके लिए सोशल रिसर्च नहीं अवेलेबल है हमारे पास, सोशल डेटा नहीं है, और जो सोशल डेटा है वो मैनिपुलेटेड है। तो ये एक रिसर्च कल्चर की बहुत कमी है इंडियन यूनिवर्सिटीज में भी, मगर उस पर गवर्नमेंट को बहुत फोकस होके काम करना पड़ेगा, और इनोवेटिव तरीके से देना पड़ेगा। ये पुराने किसी यूरोप के या फिर अमेरिकन रिसर्च स्ट्रक्चर को उठा लेना, या फिर भारत की बाहर की यूनिवर्सिटीज को मतलब यहाँ पे कैंपस खोलने की परमिशन देना, मतलब वो भी मुझे नहीं लगता सोल्यूशन है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो पब्लिक फंडिंग के बिना एजुकेशन को वो नहीं किया जा सकता। प्राइवेट एजुकेशन, हमने अपने इंजीनियरिंग का देखा क्या हाल हुआ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का, बहुत बुरा हाल हुआ, मतलब कॉलेजेस बंद हो गए क्योंकि वो उनके पास ना फैकल्टी थी ना रिसोर्सेज थे। इंजीनियरिंग ये जो बहुत महंगा सिस्टम है जी। उसको डेवलप कर पाना, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पब्लिक फंडिंग के बिना, मतलब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फंडिंग के बिना हम अपने एजुकेशन सिस्टम को रोबस्ट नहीं बना सकते। दैट इज द फैक्ट। और क्योंकि नहीं चलाया जा सकता, आप मतलब इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है, वहां पे भी हमारा लैक है। प्रोफेसर्स की बहुत ज्यादा कमी है कॉलेज में, मतलब ओवरलोडेड है। अब कुछ जगह पे जैसे है कि जो हैं भी वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो एक ये। आपने यूरोप की बात की सर, तो हम्म। हमारा लाइक हम लोग अभी तक रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे। हम्म। बहुत बार देखा गया है कि, बहुत बार क्या मतलब, दिस इज अ ट्रेंड एक्चुअली रिसेंट इयर्स में, कि बैचलर्स खत्म होता है स्टूडेंट्स का, हम्म। एंड एज सुन एज दे एंड अप विद ग्रेजुएशन, लोग बाहर अप्लाई करते हैं। देयर इज अ ब्रेन ड्रेन। हम्म। मतलब वी आर अनेबल टू होल्ड ऑन टू आवर ग्रेजुएट्स, कि हम हम्म। उन्हें यहाँ पे मास्टर्स एमएससी परफॉर्म दे पाए, वो परफॉर्म करवा पाए, या उनको हायर एजुकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन लेवल में उनको
इन्वॉल्व कर पाए, सस्टेन करके होल्ड कर पाए इंडिया में. Why cannot India is able to hold and sustain onto our talent? And what is the root cause of this persistent brain drain? मतलब ये तो सालों से रहा है. हमारे यहाँ सर सुश्रुता से लेके आर्यभट्ट रहे हैं जिन्होंने लिटरली मतलब इनोवेशन और साइंस इनके बेस रहे हैं. इन्होंने शुरुआत की है साइंस की, रिसर्च की, सर्जरी की. इवन देन वैसे एक एटमॉस्फेयर, वैसे कल्चर से आते हुए आज हम एक ऐसे पोजीशन पे खड़े हैं कि हमारा मोर देन 50 to 60% ऑफ ग्रेजुएट, जिन द पीपल हु आर केपेबल, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बाहर चले जाते हैं. रिसोर्सेस अवेलेबल है, जिनके पास रिसोर्सेज है वो बाहर चले जाते हैं. हम लोग क्यों नहीं वो कुछ उनको ऐसा दे पा रहे हैं कि वो उसे सस्टेन करे, वो यहाँ पे ही रहना, इंडिया में ही रहना अफोर्ड करे, या इंडिया में ही अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सके. मैं इसको थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन कहना भी नहीं चाहूंगा. अच्छा. देयर इज आल्सो वेरी गुड ब्रेन अवेलेबल इन इंडिया, बट देयर इज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी गैप. That is called if the brain is very, मतलब Indian brain is very good. Brain, I'm talking about the individual. If individual brain is very good, but there is a lack of opportunity, ठीक है, तो वो बाहर जाएगा ही. नेशनलिज्म, इंडियन कल्चर, ये सब अपॉर्चुनिटी से अगर किसी को मिलती है तो ये सब जाता है. ठीक है, ये उन्हीं लोगों को अच्छा लगता है जो यहाँ पे हैं. ठीक है, वो रिलेट कर पाते हैं या फिर वो अपने आप को एक उसमें दे सकते हैं. अगर किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो क्यों नहीं जाएगा. ठीक है, तो इंडिया में सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी गैप है, और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में सीट्स का बहुत कम होना, और जो सीट्स हैं भी वहां पे भी उस तरीके की फंडिंग ना अवेलेबल होना. इवन आईआईटीज एंड आईआईएम्स आर लैकिंग देयर फंड्स. चाहे ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं, चाहे स्टैनफोर्ड की बात करते हैं, या लेडन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूरोपियन जर्मन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, अधिकतर यूनिवर्सिटी पब्लिक फंडेड है. ठीक है, उनका एक क्लियर एक मोटिव है, हर चीज पहले से डिसाइड है कि पीएचडी करनी है, फिर पोस्ट डॉक के बाद इंडस्ट्री और रिसर्च के रोल्स उनके क्लियर डिफाइन है. एवरीथिंग इज क्लियरली डिफाइंड कि अगर कोई पीएचडी करेगा तो उसके लिए रोल वहां पे ऑलरेडी डिफाइन है. इंडियन स्टूडेंट्स को पोस्ट डॉक या पीएचडी पोजीशन वहां बहुत आसानी से स्टेम्प्स में मिल जाती हैं, क्योंकि ब्रेन यहाँ का अच्छा है. वहां पे मतलब बहुत लोग नहीं करना चाह रहे हैं रिसर्च. ठीक है, तो भारत में पीएचडी के बाद क्या हाल होता है, पोस्ट डॉक करते करते लाइफ लोगों की निकल जाती है, बट उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं क्योंकि रूल्स ही नहीं डिफाइन है. इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन ही नहीं है इंडियन एकेडमिया का, जिससे वो उनके इनोवेशन या उसको यूज कर पाए. और इंडियन इंस्टीट्यूट में एक हायरार्की का सिस्टम है, जो एक नेटवर्किंग का सिस्टम है. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मान लो पीएचडी कर भी लेता है तो वो हायरार्की प्रोफेसर्स की चली आ रही है, या फिर यूनिवर्सिटी की अपनी हायरार्की है, तो उन्हीं को कुछ ग्रांट्स मिल जाएंगी या फिर समथिंग. एक उसको एक इस तरीके का कल्चरल करप्शन हम कह सकते हैं, जो इंडियन करप्शन टाइप्स ऑफ करप्शन है, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलता है. तो वो जिनको नहीं मिलता वो बाहर चले जाते हैं पीएचडी करने. सबको पीएचडी पोजीशन तो यहाँ मिलती भी नहीं है. आईआईटीज में कितनी पीएचडी पोजीशन है, मगर अभी मैं देख रहा हूँ कि आईआईटीज में पीएचडी पोजीशन खाली पड़ी हुई है, क्योंकि बाहर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है. अभी मेरे मतलब रिसेंट मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक एनआईटी से फ़ोन आया था मेरे एक कलीग का, उसको पीएचडी स्टूडेंट नहीं मिल रहे थे. एनआईटीज में भी पीएचडी सीट्स एम्प्टी हैं. हाँ, एम्प्टी हैं, क्योंकि बच्चों के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो बाहर चले जा रहे हैं, बाकी बीटेक इंजीनियरिंग के बाद अपना जॉब कर रहे हैं. तो रिसर्च एंड इनोवेशन का इतना बुरा हाल हो रहा है, उस पर काम दूसरा क्यों करेगा. मैक्सिमम 60,000 पीएचडी पोजीशन पे मिल रहा है. ठीक है, वो अगर क्लासेस भी लेता है 60,000, और वो अगर आईआईटी से या फिर एनआईटी से पढ़ा हुआ अच्छा स्टूडेंट है, उसको 1 लाख की जॉब मिलेगी, वो तुरंत जॉब मार्केट में जाएगा कि पीएचडी के लिए अच्छा स्टूडेंट है तब भी. तो एक तो सबसे बड़ा क्लियर पाथवे नहीं, पीएचडी के बाद उसको जॉब ऑफर होगी. सिर्फ हमारे पास पीएचडी के बाद एकेडमिया की जॉब है, इंडस्ट्री की जॉब ही नहीं है. और यूरोप में सबसे बड़ा ज्यादा एकेडमिया की सबसे कम जॉब है, वहां पे रिसर्च के बाद इंडस्ट्री की जॉब सबसे ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि वहां की जो एक इंडस्ट्री है वो अपने रिसर्च एंड इनोवेशन पे बहुत खर्च कर रही है. उनका टोटल बजट 10%, मतलब अपने टोटल बजट का वो 10% रिसर्च एंड इनोवेशन पे खर्च कर रहे हैं. भारत में ना कोई इंडस्ट्री कर रही है ना गवर्नमेंट कर रही है.
तो ये गैप, तो अपॉर्चुनिटी गैप जो गैप है, या तो वो मिलेगा ही मिलेगा। ये इकोसिस्टम हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ में हमारी इंडस्ट्री का भी रोल खराब है। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, कुछ को छोड़ के इन्होंने रिसर्च इनोवेशन पे कभी ध्यान नहीं दिया। शायद उनको महंगा लगता था, वो फाइनेंस नहीं जनरेट कर सकता है। और हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा, फाइनेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एकेडमिया। Yes, अच्छा sir. फाइनेंस Absolutely. तभी डेवलप होगा जब आपका रिसर्च एंड इनोवेशन अच्छा होगा। और इसके एग्जांपल्स पूरी दुनिया में पड़े हैं। हम हमारी हिस्ट्री पूरी इसी से भरी पड़ी है, क्योंकि हम रिसर्च इनोवेशन में ज़्यादा थे, इसलिए हमारी इकोनॉमी सबसे अच्छी थी। आज हम रिसर्च इनोवेशन में सबसे खराब हो रहे हैं, तो हम उसको वो कर रहे हैं। चाइना ने सिर्फ 30 ईयर्स में अपने रिसर्च एंड इनोवेशन को इतना ड्रास्टिक चेंज कर लिया कि वो वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया। टोटल प्रोडक्शन 40% है चाइना में, इससे पहले अमेरिका में था और यूरोप में था। तो ये गैप तो सबसे एक है। दूसरा, एकेडमिक फ्रीडम। इंडियन इंस्टीट्यूट में एकेडमिक फ्रीडम सिर्फ रिसर्च पेपर और कुछ प्रोजेक्ट से निर्धारित हो रही है, तो वो इनोवेटिव कहाँ से करेंगे? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो वो आप वहाँ का पीएचडी स्टूडेंट अपने लिए कोई भी इनोवेटिव तरीके से कुछ भी कर सकता है। वो दे हैव ए लिबर्टी। और हम चेक एंड बैलेंस में ब्यूरोक्रेटिक उसमें ही पड़े हैं, 6 महीने में रिपोर्ट देनी है, और आपने कितना काम किया, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए। ठीक, ये एक इंडिविजुअल काम हो सकता है। जब आप उस पर बर्डन डाल देंगे तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। वो रिसर्च इज ए वेरी क्रिएटिव वर्क। वो 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल Yes, तो एक रिसर्च absolutely, sir. पेपर होगा अगर वो एक्चुअल पेपर होगा। Hmm. तो अब ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर है। और दूसरा, ग्लोबल नेटवर्क्स की इंडिया में बहुत हमने काम नहीं किया। इंडियन यूनिवर्सिटीज की भी मतलब ग्लोबल नेटवर्क जो उस पे होते हैं, तो हमने अब तो ध्यान देना स्टार्ट किया कि रूटलेज या फिर स्प्रिंगर, इन सब से कोलैबोरेशन। भारत में कितनी यूनिवर्सिटियों के पास मतलब स्प्रिंगर या रूटलेज का वो है, सब्सक्रिप्शन है? 10 से 15 Hmm. यूनिवर्सिटीज के पास, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं। बाकी किसी के पास सब्सक्रिप्शन तक नहीं इंडियन यूनिवर्सिटी, तो वो ग्लोबल नॉलेज को कैसे वो करेंगे? मुझे जहां तक लगता है उत्तर मतलब यूपी की 2 या 3 यूनिवर्सिटीज के पास इनका सब्सक्रिप्शन होगा, जो ग्लोबल नॉलेज सिस्टम है। दिल्ली में है, दिल्ली में जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनके सबके पास होगा। बट अधिकतर के पास एक्सेसिबल ही नहीं है ये नॉलेज। मैं देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो मतलब बाहर के, दिल्ली के हैं या फिर वो हैं, उनको रिसर्च जो मतलब फॉरेन में हुए हैं उसके पेपर्स तक अवेलेबल नहीं है उनके पास, वो यूनिवर्सिटी सिस्टम में अवेलेबल होने के बावजूद भी। वो कहीं से पायरेसी कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं। एटलीस्ट ये तो प्रोवाइड, एक स्टूडेंट का बेसिक राइट है कि अच्छे रिसर्च जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन यूनिवर्सिटीज के पास होना चाहिए। Absolutely. यूनिवर्सिटी भी नहीं खर्च करना चाह रही है उस पर कि हम इतना महंगा सब्सक्रिप्शन लेके क्या करेंगे, बच्चे पढ़ते नहीं। तो ये कोई वो नहीं कि बच्चे पढ़ते नहीं है तो नहीं हमारे पास होना नहीं चाहिए। ये आपको कैसे डिसाइड करेंगे कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? बच्चे देख रहे हैं कि पायरेसी से, ये लिबर्ट से या फिर दूसरे भी जो भी पायरेटेड वो वर्जन है उनको यूज करेंगे। और कम से कम हमें ये प्रोवाइड करा देना चाहिए अपने ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से, तभी तो वो देख पाएंगे। एक्सेस ही नहीं है। हम फिर एनडीएलआई बना लें, चाहे कुछ भी बना लें, उसका फर्क नहीं पड़ता। आपके पास ग्लोबल नॉलेज का एक्सेस ही नहीं है, तो आप कैसे? तो ये गैप जो है ये बहुत बड़े हैं। इंडियन, आप जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आया, Yes, sir. हम स्लोगनिज्म में बहुत आगे, स्लोगन देने में बहुत आगे रहते हैं हमेशा से। बट कितने साल से मैं सुन रहा हूँ कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, उस पर इतना बजट अलॉट हुआ, मगर एक्सेस किसको मिलेगा? टॉप को मिलेगा, आईआईटीज को मिल जाएगा, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस को मिल जाएगा, जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मिल जाएगा। छोटे शहरों में क्या होगा? तो सर ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन छोटे शहरों के कॉलेजेस के लिए अवेलेबल अभी नहीं तो हो इम्प्लीमेंट, पाएगा? अभी कुछ नहीं पता कि क्या उनकी पॉलिसीज आएंगी और कि क्या होगा। बट कितने सालों का ग्लोबल कितने नॉलेज, सालों में होगा? हाँ. कितने सालों में होगा, कितने सालों से बच्चे परेशान हैं जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है। इसीलिए हम शायद एआई की रेस में पीछे रह गए। तरीके से लाइक हमारे पास कोई भी एआई से वो नहीं है, हम काम करते रह गए, मगर एक गैप है। इवन परप्लेक्सिटी ने जैसे ग्लोबल परप्लेक्सिटी एआई इज ए वेरी गुड एआई जो, Yes, sir. बट इंडियन ओरिजिन के उसने फाउंड किया, बट इंडिया
But not in India, exactly. तो हमारे पास डेटा ही नहीं अवेलेबल होगा, हमारे पास उसके लिए रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल होंगे। जैसे भी हो, बट हम इस रेस में भी पिछड़ गए, डिफेंस की रेस में भी हम पिछड़े हुए थे, डिफेंस सेक्टर में। हाँ, दूसरा, इंडिया यूरोप में एक सबसे बड़ा एक कोलैबोरेशन आगे फ्यूचर में अगर हमें देखना है तो ग्रीन एनर्जी पे देखना है, वो भी एक मतलब ग्रीन एनर्जी और इन्वायरमेंट, इस पे बहुत अच्छे से सोचना चाहिए इंडिया को, इंडिया और यूरोप पार्टनरशिप में। तो एक रिसर्च सिस्टम में सबसे बड़ा गैप यही है, हमारे पास एक रिसर्च ग्लोबल नेटवर्क की बहुत कमी है। अब लोग, अब जैसे कोई भी टीचर है वो अपना ग्लोबल नेटवर्क वो करना चाहे, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है कि वो जुड़ा हुआ ही नहीं है ग्लोबल नॉलेज से, तो उसको कैसे वहाँ पे एक्सेस मिलेगा। टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के अलावा ग्लोबल नेटवर्क कहीं पे भी नहीं है। और हम 10 यूनिवर्सिटीज़, आईआईटी, आईआईएम और टॉप की 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के बेस पे हम अपना ग्लोबल नॉलेज सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते हैं। तो आप रिसर्च कराते रहिए, वो वही प्लेगराइज रिसर्च, एआई जनरेटेड रिसर्च, यही निकलेगा। और भारत, एक इंस्टीट्यूशनल कल्चरल गैप है बेसिकली कि हमारा कल्चर बिल्कुल उस पर डिपेंड हो गया है कि हम एजुकेशन को सबसे लास्ट में रख रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, दिस वाज द पॉइंट आई वाज थिंकिंग अबाउट। विदाउट जब रिसर्च के आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं कम पा सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं पा सकते, आप जितना प्रयास कर लीजिए। अगर आपका यूथ मतलब एजुकेशन के रूप में रिच नहीं होगा, और उस, तो वो आप, ये 20 साल का काम है, ये आप सोचें कि हम 1 साल 2 साल उसको पढ़ा के हम उस फाइनेंस जनरेट करने नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका रिसर्च अच्छा नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा ही नहीं। आप करते रहिए, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस पर गवर्नमेंट को काम का, हालांकि फोकस कर रहे हैं, तो वही बस इम्प्लीमेंटेशन, ब्यूरोक्रेसी के हर्डल्स, तो वो मुझे सबसे ज्यादा, ब्यूरोक्रेसी के हर्डल्स मुझे सबसे ज्यादा दिखते हैं। और वो एक तरीके का जैसे फ्यूडल सिस्टम हो गया है, जो अंग्रेजों के समय में था, जो मैकाले ने कहा था, वही अब ब्यूरोक्रेसी का फ्यूडल सिस्टम, वो किसी चीज को छोड़ना ही नहीं चाहता, हर चीज को कंट्रोल में करना था चाह रहा है। कम से कम 2 फील्ड्स को पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दे, ऑटोनॉमी की अपनी समस्याएं हैं, ठीक है, बट वो धीरे धीरे सुधर सकती थी, बट उस पर फोकस ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो कम से कम गवर्नमेंट को इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमी देनी ही पड़ेगी। वो 2 साल मतलब कुछ नहीं करे, 3 साल कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर फंडिंग देनी ही पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा एरिया है कि हम 100 डेटा लाते हैं, उसमें से एक डेटा काम का निकलता है, उसी इनोवेशन होगा। यस सर। तो हम उससे प्रोडक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते ना, कि हर कोई प्रोडक्शन देगा ही। और जो अगर पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे बंद कर दें। हाँ, हम उसे बंद कर देंगे। प्रोडक्शन, आप इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होगा ना, रिसर्च में तो एक सब्जेक्टिव थिंग ना, 100 लोग काम करेंगे, 100 डेटा आएगा, एक, तो हाँ काम आएगा। एग्जैक्टली। इनोवेशन इज ऑल अबाउट दैट, कि इतने फेल्योर के बाद शायद कोई पूरी एक, हाँ एक साइंटिस्ट पूरी लाइफ में कभी सक्सेस ना हुआ हो, उसने कोई भी इनोवेशन नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने प्रोडक्शन नहीं किया है। हम उसको प्रोडक्शन से लिंक नहीं कर सकते रिसर्च को कभी भी। और हम सोचते हैं हमारा एक कल्चर फिनोमेना है, अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो उस पर पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा, नहीं होता है ऐसे। रिसर्च ऐसे काम नहीं करता है, और भले ही मतलब इंडस्ट्री भले ही ऐसे काम करती हो, मगर इंडस्ट्री को ये भी सोचना चाहिए कि 100 रिसर्च में से, 1000 रिसर्च में से अगर एक भी रिसर्च आया, तो उससे जो फाइनेंस जनरेट होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि आपके 20 रिसर्च को वो फंडिंग कर सकता है। चाइना ने क्या किया, धीरे धीरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया, अपने स्टूडेंट्स को यूएस भेजा, उनसे फिर उनके बाद उनको उससे अच्छी सैलरी पे इंडिया में बुलाया। हम क्या बुला पाते हैं? नहीं, वही बात है सर कि लोग बाहर जाते हैं पढ़ने, उन्हें एमएससी मतलब मास्टर्स की अपॉर्चुनिटी मिलता है, फिर वो पीएचडी करते हैं, उन्हें इवेंचुअली पीएचडी पोस्ट डॉक एंड देन द इंडस्ट्री देयर इट हायर्स देम, एंड फिर वो काइंड ऑफ सेटल हो जाते हैं वहीं पे। सेटल हो जाते हैं, क्योंकि सेटल होने के बाद 2 चांस, अच्छा सैलरी पैकेज और दूसरा एटमॉस्फेयर, लाइफ वहां पे बेटर है, मतलब सिविल जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो वो है, उनके पास पार्क्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो वो क्यों आना चाहेंगे अपनी लाइफ को छोड़ के। ठीक है, कुछ लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो क्या उनको उस सैलरी में यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। गवर्नमेंट चाहे दे सकती है, बट वो एक लैक है, ना इंडस्ट्री देती है उतने वो अपॉर्चुनिटी, और ना गवर्नमेंट दे सकती है। रिसर्च इनोवेशन में बहुत लोग भारत में आना चाहते हैं, बट उनको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम 1 लाख रिसर्च में यहाँ पे वो है।
प्रोजेक्ट्स कितने हैं, हम मुश्किल से 300-400 प्रोजेक्ट इंडिया में रन कर रहे होंगे हायर एजुकेशन में, जो 5 करोड़ या 20 करोड़ 25 करोड़ के होंगे। इतने में क्या काम हम अपनी रिसर्च उसको बुला पाएंगे? हमारा यूथ ड्रिवन कंट्री है सर, ऐसे ही। तो तो हमारे पास रिसोर्सेस, हम रिसर्च एंड फंडिंग पे बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम चाइना के मॉडल को अपना सकते हैं। उन्होंने जो किया कि वहाँ रिसर्च के लिए वहाँ भेजा, ग्लोबल नॉलेज को उन्होंने गेन किया और उन्होंने उनको बुलाया, और ये उनसे प्रोडक्टिविटी की उम्मीद ही नहीं की। आप इनोवेशन कीजिए, आप कुछ भी बनाइए। मतलब हम कहते 2000 में से एक रिसर्च बना तो वो पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए काम आएगा ना, तो हमारा प्रोडक्शन अपने आप बहुत बढ़ जाएगा। चाइना ने 30 साल में यही किया है, और उसने अपने नॉलेज सिस्टम को इतना डेवलप कर लिया। और दूसरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम को हमने भूल गए। अब मतलब एक खिचड़ी तरीके का नॉलेज सिस्टम हमने बना लिया अपना। तो शायद ये कह लो, ये भी प्लेगराइज हो गया हमारा नॉलेज सिस्टम भी, जो आज इंडस्ट्रीज में चल रहा है। तो एक सेल्फ डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वोकेशनल के लिए, मुझे बहुत दुख होता है कि इंडिया में काम नहीं हुआ। जो इंडिजिनस नॉलेज जो परिवार से आया, किसी ने वो वहीं से सीखा उसने, मतलब एक प्रॉपर नॉलेज नहीं किसी को दिया गया। स्कूल सिस्टम से ही हमें ये नॉलेज, जैसे यूरोप में सिस्टम है कि अगर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर या फिर सीए नहीं बनना है तो वो अपना वोकेशनल स्कूल सिस्टम से ही सीखना स्टार्ट कर देता है, तो उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे ज़्यादा रहेंगी। स्किल डेवलपमेंट बेसिकली। स्किल डेवलपमेंट। अब भारत में जॉब्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है, वोकेशनल एजुकेशन को भारत पे ध्यान देना चाहिए। मुझे तो बहुत ताजुब होता है कि पूरे भारत में सिर्फ एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट है जो डेवलप कर रहा है। वोकेशनल एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है भारत में, अगर उस पर नहीं हुआ, और इसीलिए इंडस्ट्री उनको हायर नहीं कर पा रही है। हायर नहीं कर रही है। तो एक लैग तो दिखेगा ना कहीं ना कहीं। तो ये प्रॉब्लम है, मगर गवर्नमेंट इस पर काफ़ी फोकस कर रही है, बट इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना प्रॉब्लम्स हैं। तो एक और फाइनल मेरे दो क्वेश्चंस है सर, वो लेके आज हम आपका सेशन एंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर बात करें सर, तो आज तो मतलब हर दूसरे घर में आपको देखने मिल जाएगा, एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, एक कोई एसएससी एस्पिरेंट है। व्हाट डू यू थिंक कि एक स्टूडेंट, अगर एक ग्रेजुएट अपने लाइफ के, अपने यूथ के क्रूशियल 3-4 साल अगर सिर्फ एक एग्जाम की प्रेपरेशन में लगाता है, जबकि अकॉर्डिंग टू डेटा अगर देखा जाए तो यूपीएससी में अराउंड 28 लाख एप्लीकेशंस आते हैं हर साल, 28 to 30 लाख एप्लीकेंट्स आते हैं, और विच इज बेसिकली फॉर अराउंड 900 to 1000 सीट्स। मतलब आप देख रहे हैं परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो हर सीट के लिए 1000 से 1500 बच्चे compete कर रहे हैं एक सीट के लिए। इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, और एक बार में नहीं निकला तो दूसरी बार में नहीं निकला तो ये जो विशियस साइकिल जो हो जाता है, क्या किसी को या एक स्टूडेंट को जो एक एवरेज अच्छा स्टूडेंट रहा हो, एवरेज स्टूडेंट रहा, हर किसी से ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता है कि वो गवर्नमेंट यूपीएससी जैसी या गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करके एक बार में अपीयर हो जाए, अटेम्प्ट कर ले। बट देन एक एवरेज स्टूडेंट जिसका अच्छा खासा स्कूल रिकॉर्ड रहा है, कॉलेज रिकॉर्ड रहा है, क्या वो 2-3 साल अपने यूथ के, 4 साल अपने प्रोफाइल के, अपने यूथ के ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रेपरेशन में लगाएं, या फिर उन्हें दूसरे ऑल्टरनेटिव देखने चाहिए? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मैं शुरुआत से करता हूँ। 2010 के समय में एग्जाम देता था, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तब एस्पायरेंट्स थे, एसएससी में आते थे लगभग 2 और 3 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है। और सिविल सर्विसेज में मुश्किल से 2-3 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होते थे। आज 15 सालों में 25 लाख, एसएससी में 50 लाख पहुंच गए हैं। ठीक है। और जो जूनियर लेवल की जॉब्स हैं, जो हायर सेकेंडरी की जॉब्स हैं, वहाँ पे 1 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। मेरे समय पे इतना कम था कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में इतनी संख्या नहीं थी। ये एक तो ये दिखाता है, तब भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का बहुत क्रेज था और अब भी बहुत है। बट जॉब्स की क्राइसिस की वजह से ये गवर्नमेंट एग्जाम के बीच में बहुत ज़्यादा उस पर वो हुआ,
मतलब बहुत ज्यादा कि मतलब एस्पायरेंट्स बढ़ते ही गए। 3-4 साल देना, 5 साल दे देना, किसी भी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट नहीं चाहता है, मगर उसकी मजबूरी बन जाती है। मजबूरी। एक इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स का सिस्टम एक तरीके का इंडियन फैमिलीज के लिए एक रिस्पेक्ट का वो है, ठीक है, हम्म। सिक्योरिटी का वो है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज उस तरीके की जॉब्स नहीं प्रोवाइड करा पा रही हैं उस लेवल के टैलेंट को, ठीक है। हम्म। तो वो सोचता है, जो एस्पायरेंट्स हैं या इंडियन फैमिलीज सोचती हैं कि हमें वो जॉब मिल जाएगी, हमारे बच्चे को मिल जाएगी, या बच्चे को अपनी तरीके से सोचता है कि हम उस हमारे पास पावर आ जाएगी, हमारे पास जॉब सिक्योरिटी आ जाएगी, अपने टैलेंट को या अपने उस स्किल्स को बढ़ाए बिना। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है? नॉर्मल क्वांट और ये इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा तो कोई स्किल्स डेवलपमेंट का काम होता नहीं गवर्नमेंट हम्म। एग्जाम में, ठीक है। मगर उससे गवर्नमेंट की भी मजबूरी, उससे अच्छा कोई सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट से एम्प्लॉयज को चूज करने का। शायद हमने डेवलप नहीं किया या फिर है ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अलावा हम कुछ अच्छे थे। दूसरा, कैपिटल है नहीं कि सबके पास जो मतलब बिजनेस कर लें, तो स्टूडेंट चाहता नहीं है वो करे, ठीक है, कि 4 साल 5 साल। तो गवर्नमेंट जॉब्स का नेचर हमने, हमारी सोसाइटी ने उसको वैसा बना दिया, इसलिए एस्पायरेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये कहीं से भी नहीं सही है कि हम गवर्नमेंट एग्जाम पे 4 साल 5 साल 6 साल बर्बाद करें अपने, ठीक है। सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है। जिसको बहुत ज़्यादा चाहिए उसी को करनी चाहिए, मगर सोशल फिनोमिना की वजह से, हमारी जो फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से, हम मतलब उसकी तरफ बिल्कुल ढकेल दिए गए हैं जॉब्स की। आईएएस का सिस्टम क्या बना दिया है? एक ब्यूरोक्रेसी भारत में फ्यूडलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कि उसके पास हम्म। पावर होगी, उसके पास पर्क्स होंगे, सब कुछ होगा। हम्म। मगर एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के इंसान के पास कौन सी स्किल्स है? सिर्फ वो 20 किताबें पढ़ने के बाद, एक अपना डेवलप करने के, एक हम्म। एग्जाम्स के क्राइटेरिया से पढ़ने के बाद उसके पास क्या है? वो स्किल्स हैं इंडस्ट्री की? नहीं है, ठीक है। डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, तो और पर उसके सर बाद आईएएस आईएफएस हम देख रहे हैं, मतलब आए दिन आप पूरा मैं कृतज्ञ जानता से। हूँ क्या हाल हो गया है। मतलब इस सिविल सर्विसेज का ओनली काम होना चाहिए था कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, ना कि वो एक फ्यूडल सिस्टम की तरीके से एक शहर में बड़ा घर लेके और उसके हर सिक्योरिटी सब। बाद में क्या आईएएस और आईपीएस का क्या सिस्टम है? वो एक पावर का एक केंद्र बिंदु बन गया है। पॉलिटिशियन के पास सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगी? ब्यूरोक्रेसी के पास होगी। अब वो ब्यूरोक्रेसी अपने को एक उस तरीके से ट्रीट कर रही है, और वही आ रहा है। तो इसीलिए फैमिली में मतलब सोशल स्ट्रक्चर में क्या है, इनके पास बहुत पावर है, इनके पास बहुत करप्शन के लिए पैसा है, तो हमें भी यही बनना है। तो एक इजी वे लगता है कि हम एक अपने आप को बहुत छोटे से, मतलब एक एग्जाम पास करके, अगर हमारा लक अच्छा रहा, क्या 10,000 जो आईएएस का एग्जाम देते हैं उसमें क्या हमारे पास सिर्फ 1,000 टैलेंट है? नहीं, नहीं, 50,000 एग्जैक्टली। 1 लाख अच्छा टैलेंट है जो उसमें एग्जाम में अपियर करना, मगर सिलेक्शन सिर्फ 1 लाख किस्मत वालों का हो रहा है। किसी का एक नंबर उसकी पूरी लाइफ डिसाइड कर देता है ना। तो अब क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास सोसाइटी को दिखता है बहुत पावर है, पैसा है और सब कुछ है, तो फैमिली और खुद का माइंडसेट यही अलाउ करता है कि हम एक एग्जाम पास कर लेंगे तो हम बहुत एक राजा बन जाएंगे और लोगों पे शासन करने लगेंगे। एक इंडियन साइकोलॉजी है ये, क्या ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर हमें किसी पे शासन करने को मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। और एक साइकोलॉजी है एब्सोल्युटली सर। तो वो उसी इसीलिए ब्यूरोक्रेसी या फिर गवर्नमेंट जॉब में इंडियन यूथ वही देखता है, और इसलिए उसकी प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं। वो स्किल है उसके पास है नहीं, वोकेशनल है नहीं, तो वो क्यों देखेगा? तो उसके पास सोचता है चलो एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे और उसमें हो जाएंगे। टीचर्स की जॉब में कौन आना चाह रहा है? जिनके पास जॉब नहीं है। जो पढ़ाना चाह रहे हैं प्रोफेसर में कौन आना चाह रहा है? जिसको जॉब चाहिए, या जिसको रिसर्च में मजा आ रहा है, वो नहीं आना चाह रहा। वो लोग बाहर जा रहे हैं वो लोग बाहर जा रहे हैं। हालांकि सब नहीं बेसिकली जा रहे यहाँ। हैं, ये सभी नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी लैक है, एक अपॉर्चुनिटी का लैक है कि हम रिसर्च करके क्या कर लेंगे। हम्म। तो ज्यादा एकेडमिया में जॉब, इस सोशल साइंस में इंडिया में जॉब्स नहीं है एकेडमी, मतलब टीचिंग के अलावा। जबकि यूरोप और अमेरिका में हम देखते हैं सोशल साइंस के रिसर्च या उसकी उनकी उनकी हर जगह उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हर इंडस्ट्री में अवेलेबल है। इंडियन टेक कंपनियां सोशल साइंटिस्ट को हायर ही नहीं करती हैं,
उनको नीड नहीं लगती है। मगर बाहर जाते हैं हम देखते हैं सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है वहां पे, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर या फिर किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर को वो समझ सकते हैं। जैसे डिफेंस में ही हम देखते हैं, डिफेंस में डिफेंस एक्सपर्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही होगा, ये कैसे आप वो करेंगे, डिसाइड करेंगे? तो ये भारत में एक बहुत बड़ा गैप है साइंस और उसके बीच में, जो मतलब इंडिया के रिसर्च कल्चर को खराब कर रहा है। तो इस गैप को फिल करना है। अब अभी एक प्रोजेक्ट आया था एनआरएफ की तरफ से, जो कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे, उसमें कितनी स्कॉलरशिप थी, मतलब लगभग 4 या 5 पूरे इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है एनआरएफ का काम अच्छा है, अगर वो अच्छा काम किया तो मैं बहुत मतलब उसके बारे में, मतलब जितनी भी चाहे आईसीएसआर हो, इंडियन वर्ल्ड काउंसिल, जितने भी मतलब रिसर्च थिंक टैंक हैं, उनकी जगह पे एक अगर एक ऑटोनोमस बॉडी बनती है तो मैं उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बट लेट्स सी कि कितना इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगेगा। 2005 हो गया है, गवर्नमेंट का पॉलिसी 2040 तक इसको इम्प्लीमेंट करने का है। जब भी कोई नई पॉलिसी आती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने में। बट देखते हैं, भारत में इम्प्लीमेंटेशन इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम एंड द ब्यूरोक्रेसी इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। दे आर हर चीज अपनी मतलब तो मतलब हर इंस्टीट्यूट पे, भारत में किसी भी इंस्टीट्यूट के पास या किसी भी तरीके के थिंक टैंक या फिर किसी भी तरीके के ऑटोनॉमी नहीं है। और वो ऑटोनॉमी होनी चाहिए। हर चीज ब्यूरोक्रेसी से, इवन हमारे कोर्स भी ब्यूरोक्रेसी से हैंडल हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी एब्सोल्युटली सर। ये नहीं होना चाहिए। देयर डिफरेंट सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशन बिल्डअप में जो हमने शुरुआत की थी वो शुरुआत में बहुत अच्छे थे, मगर इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट में हम भी पीछे रह गए थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशन बहुत ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन डेवलप करने चाहिए। और हर जगह अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसमें प्रोडक्शन नहीं देखना चाहिए। ये चाहे मतलब मेडिकल फील्ड हो चाहे एजुकेशन फील्ड हो, देयर दीज आर नॉट द प्रोडक्शन इंडस्ट्री, दे आर डेवलपिंग द ह्यूमंस। सो इसको ह्यूमन डेवलपमेंट को अलग तरीके से देखना चाहिए गवर्नमेंट। और शायद ये लायक है, हमारे कल्चरल लायक है ये हमारे उसमें सिस्टम में। अभी सर जैसे इंडिया यूके एफटीए चल रहा है, इंडिया ईयू एफटीए, इंडिया यूके एफटीए साइन इन हो गया, इंडिया ईयू एफटीए चल रहा है। हम्म। तो व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो है वो एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से हो सकती है? क्या हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स पढ़ सकते हैं, या किस कौन से इंस्टीट्यूट्स, हाउ कैन वी मेक आवर एजुकेशन सिस्टम not as equal to, but then if at par with the German institutes or the Finland institutes, हम क्या कर सकते हैं? क्या स्ट्रक्चरली चेंज कर सकते हैं या फाइनेंशियली चेंज कर सकते हैं कि हमारे एजुकेशन में भी, सिस्टम में भी वैसा ही चेंजेस आए, वैसे ही डेवलपमेंट्स हों? हम अपने एजुकेशन सिस्टम को यूरोपियन सिस्टम से तो बना नहीं सकते हैं, ठीक है। ओके। बट हम एक कोलैबोरेटिव ग्लोबल नेटवर्क उनके साथ में डेवलप कर सकते हैं, थिंक टैंक्स उनके साथ में डेवलप, जो साथ में मिलके काम करें। फ्री ट्रेड सिर्फ इंडस्ट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक सीमित ना रह जाए, नॉलेज का भी वो होना चाहिए। और हम उनके एकेडमिया को भारत में बुला सकें अपनी यूनिवर्सिटीज में, जो एक बहुत बड़ा लैक है, क्योंकि हम प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं उनको एक अच्छा फाइनेंस। हम उनके एकेडमिया को भारत में बुलाने के लिए उस तरीके का, इवन मैं किसी अपने इंस्टीट्यूट में किसी सेमिनार्स के लिए किसी फॉरेन प्रोफेसर्स या फॉरेन एकेडमी रिसर्चर को बुलाना चाहूँ तो उसको मैं मतलब फ्लाइट्स की टिकट तक प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो क्यों माना चाहेगा? तो उसके लेक्चर का तो पैसा मैं मतलब इवन कॉलेज तो दे नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती है। तो ये एक फाइनेंस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर फ्री ट्रेड सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक मतलब कमोडिटी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक सीमित रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम है, उससे कोई बहुत भला होने वाला नहीं। तो ये नॉलेज का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम अपना यहाँ का स्टूडेंट जाए वहाँ पे अपना जॉब, वहाँ पे अपनी एजुकेशन ले, उसके बाद वहीं जॉब कर ले, इससे समस्या का समाधान नहीं। वो ऑलरेडी है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्सेस अवेलेबल है, वो जा रहा है। जिसके पास स्कॉलरशिप है, ब्रेन है, तो वो ब्रेन की वजह से जा रहा है। जिसके पास फाइनेंस अवेलेबल है वो फाइनेंस की वजह से जा रहा है। जिसके पास पैसे हैं वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। तो अगर ये नेटवर्क हमने नहीं किया, सिर्फ एफटीए में सिर्फ हम हमेशा इम्पोर्ट कमोडिटी के, ट्रेड या इंपोर्ट हाँ, एक्सपोर्ट, हाँ। ये कमोडिटी पे ही वो रहे तो फिर उस नेटवर्क का कोई मतलब नहीं। हमने बहुत सारे लोगों के साथ एफटीए किया हुआ है,
तो उससे हम्म, बहुत इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यूरोप अपने आप में एक मतलब एक मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा से वो अपना एक बहुत आगे रहा है, बहुत आगे रहा है, कॉन्शियस मगर रहा क्लोज है। रहा है। वो उसने कभी ट्रांसफर हाँ। नहीं किया है। और ट्रांसफर इसलिए नहीं किया है, इंडिया कर सकता था अपने नेटवर्क को, अपने डायस्पोरा को इंडिया वापस बुला के, मगर वो बुला नहीं पाया, क्योंकि ना इंडस्ट्री ने उसे बुलाया और ना एकेडमिक्स ने बुलाया उसको वापस। तो ये हम कर सकते हैं कि वहां के एकेडमिशियन को भारत में एक अच्छी, अगर अपॉर्चुनिटी इंडिया अच्छी देगा तो वो बिल्कुल हर कोई आएगा, ऑब्वियसली आएंगे, हाँ। बिल्कुल आएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट हर्डल इस पे नहीं बने। आप फाइनेंस अच्छा कर दीजिए, आप फंडिंग अच्छी कर दीजिए, अपने आप ग्लोबल नेटवर्क बन जाएगा। उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसके पास अपॉर्चुनिटी होगी वो जाएगा। अगर किसी की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है तो उसके पास जिसके पास अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वहां काम करने को रेडी है, क्योंकि उसको हम्म। अपना सेल्फ ग्रोथ देखना है। वो करेगा ही। तो भारत को सबसे अच्छी फंडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा उस ग्लोबल नेटवर्क में। ऑक्सफोर्ड से बुलाना हो, चाहे स्टैनफोर्ड से, हार्वर्ड से, किसी से भी, जर्मनी से बुलाना हो, हम उनको रिसोर्सेज तो प्रोवाइड करें, तभी तो कोई यहाँ पे कोलैबोरेटिव रिसर्च के लिए एब्सोल्युटली। आएगा। इंडियंस जा रहे हैं कोलैबोरेटिव रिसर्च के लिए, मगर वहां से कोई नहीं आ रहा। ये एक लैक है और इंडिया को इस पर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, चाहे एफटीए करें, चाहे हम जो अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी फैब में मीटिंग हुई थी, जो ग्रीन एनर्जी और इन सब पे है, उसमें भी टेक्नोलॉजी पे अगर काम कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे काम करने के लिए हमें अच्छी फंडिंग देनी पड़ेगी रिसर्च में। और ग्रीन एनर्जी ही सोल्यूशन है, क्योंकि जिस तरीके से इन्वायरमेंट, यूरोप ने अपने इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा काम किया है, तो भारत में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस समय अभी तो सब, अभी वी आर सीइंग द AQI इन दिल्ली, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल, हर हरियाणा, जगह बहुत पंजाब। होने वाला है। इन्वायरमेंट में हमने क्या लैक कर रहा है, मुझे चाइना ने देखो अपने बीजिंग में कैसा मतलब अच्छा काम किया उन्होंने। हर पूरी तरीके से पोल्यूशन और सब खत्म किया उन्होंने, चाहे ईवी सिस्टम हो, चाहे ग्रीन एनर्जी सिस्टम हो। चाइना ने अच्छा, यूरोप ने बहुत अच्छा काम किया। इवन लंदन में भी यही हाल होता था मतलब इस समय, मगर उन्होंने उस पर अच्छा काम किया, और उस टेक्नोलॉजी को भारत में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो उस पे कोलैबोरेशन के साथ में हमें वहाँ के रिसर्चर्स, और वो सिर्फ और सिर्फ कैसे हुआ, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे का फंडिंग करके, अच्छा फाइनेंस डेवलप करके। भारत में वो लैग करता है, तो कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर की आई वो यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो सफल ही नहीं होती है, क्योंकि इंडिजिनस रिसर्च चाहिए ना हमें। हम हम्म। चाइना का मॉडल यहाँ पे थोड़ी लागू कर सकते हैं। देयर इज ए डिफरेंट सिस्टम। एब्सोल्युटली। तो वहाँ के चाइना का तो ऐसा है कि वो जो न्यूज, जो इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं दुनिया को, बस वही बाहर आ पाती है। एक्चुअली वहां क्या हो रहा है, वी नेवर नो। इट्स सच अ क्लो, मतलब चाइना इज सच अ हाँ बट आयरॉनिकल केस कि वो। आयोनिकल केस है, ठीक है। बट उसके उनके अपने रीजंस थे 30 इयर्स में जो उन्होंने रिसर्च इनोवेशन किया, ठीक है, उसके वो अब उनको दिख रहा है कि उसके क्या हम्म। मतलब उसके फायदे इम्प्लीमेंट, या क्या फायदे हैं इम्प्लीमेंट कर उसके। फायदे। अब वो अपनी मार्केट सर्विस सेक्टर के लिए भी खोल रहे हैं। उन्होंने जैसे अभी केवी जलाए, ठीक है, इंडियन जो वो है मतलब स्टूडेंट्स है या फिर जॉब के लिए जो एस्पायरेंट्स हैं, वो अब अमेरिका के बाद चाइना जाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे जो ग्रीन वीजा अमेरिका में आया, तो उसमें फीस बढ़ा दी, चाइना ने के वीजा फ्री कर दिया इंडियंस के लिए, डायरेक्ट फ्लाइट्स चालू हो रही। तो वो अब धीरे धीरे अपना सिस्टम खोल रहे हैं पूरी तरीके से। और इंडियन आईटी सेक्टर में नेक्स्ट हब बनने वाला है चाइना। क्यों? क्योंकि उन्होंने 30 सालों के बाद अपना पूरा सिस्टम खोलने की धीरे धीरे उसमें वो जा रहे हैं। तो वो उनके क्लोज रखने का एक अपना एक अपना एक सिस्टम होगा। उन्होंने, चाइना इज ए वेरी सीरियस कंट्री, उनका 100 इयर्स का प्लान है। वी आर नॉट ए सीरियस कंट्री। कहने में अच्छा नहीं लगता, बट उस तरह हमारे पास विजन नहीं। रियलिटी है सर, वी एग्जैक्टली। आर वेरी सीरियस अबाउट देयर एवरीथिंग, मतलब हर चीज में बहुत सीरियस है। तो यूरोप देखते हैं आगे, शायद इंडिया को, हालांकि इंडिया सीख रहा है काफ़ी कुछ। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ मतलब इंडिया के डेवलपमेंट में। बट रिसर्च एंड इनोवेशन में जिस गैप को फिल करना ही पड़ेगा, वरना शायद हमें प्रॉब्लम होगी। उस तरीके से मीडियोकर रह के फिर हम हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, विच इज अबाउट फ्यूचर। इतने देर से हम इतनी सारी डिस्कशंस कर रहे थे अबाउट द पास्ट, अबाउट हाउ हाउ एजुकेशन सिस्टम हैज बीन।
I am personally an optimistic person. I choose to see some kind of hope in things because I am also a civil services aspirant. I gave my prelims this year. Mhm. I missed by a few marks, and so and then I chose to pursue my masters because again मैं इस चीज में बिलीव नहीं रखती कि एक ही एग्जाम के लिए अगर बिना कोई बैकअप प्लान लिए एक हम्म। ही ड्रीम ड्रीम सबके होते हैं सब, बट देन हाँ बिल्कुल उस होती है। ड्रीम के पीछे आप कितने सालों तक रिसोर्सेज लगा सकते हैं प्रोसेस लगाते रहेंगे। और कितना एफिशिएंट होगा वो. दीज आर माय वेरी यूथफुल, दीज आर माय प्रोडक्टिव ईयर्स. सो आई वोंट वांट कि मैं अपने प्रोडक्टिव ईयर्स वेस्टफुल नेचर में या सिर्फ किसी चीज की प्रिपरेशन करते हुए बिताऊं. आई वुड वांट कि मैं उसी ड्यूरेशन में कुछ स्किल सेट कलेक्ट करूं, जिस एरिया में आई वाज एक्चुअली गुड विथ वो एरियाज डेवलप करूं. सो आई ट्राई टू सी होप, द होपफुल साइड. आई ट्राई टू सी द ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ थिंग्स. आपको क्या लगता है कि एनईपी तो हमने लाया, वी आर ऑल्सो वर्किंग इन हायर एजुकेशन सिस्टम्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज. What do you think कि how can India and how is India working towards filling this gap, जो जिस गैप की आपने बात की, और ये लगभग हम कितने सालों में होता हुआ देख सकते हैं? हमारे पब्लिक एग्जाम्स की स्ट्रक्चर भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है बिकॉज एक सीट के लिए अगर 100 से ऊपर कैंडिडेट अगर एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ तो हम 1000 की बात करते हैं, मैंने तो फिर भी बहुत स्केल डाउन कर दिया इसे. तो व्हाट डू यू सी कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाएंगे या करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एग्जैक्टली कितने सालों में हो सकता है? एग्जैक्टली तो फिगर नहीं मांगूंगी मैं, बट देन कितने सालों का प्लान हो सकता है ये? Let's start for the personal question. Why you want to be a civil servant? क्या तुम्हारा मोटिव है? मेरा मोटिव है सर सिविल सर्विसेज का. आई एम ड्रिवन बाय अ वेरी नेशनलिस्टिक एंड पेट्रियोटिक विजन. मतलब मुझे अपने, आई डोंट नो इफ आपको लगेगा ये कि काफी इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, जैसा यूपीएससी नहीं, का मैं आपसे एक इंटरव्यू. पर्सनल मतलब एक की पॉइंट क्या है, ठीक है, सबके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट एक की पॉइंट क्या है? मेरा एक की रीजन है सर कि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी. ओके। मेरा एक बहुत पर्सनल गोल है, एक बहुत पर्सनल ड्रीम है कि ठीक है। जिस सोसाइटी ने मुझे अब तक बड़ा किया है, जिस सोसाइटी ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं ठीक है। उन लोगों के लिए उनको कुछ वापस दूं जितना मुझसे हो पाए. अब वो ठीक है। या तो सिविल सर्विसेज के थ्रू हो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी सर्विस या किसी गवर्नमेंट सर्विस, क्योंकि आपके पास वहां पे सबसे ज्यादा पावर मिलती है और सबसे ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं रिसोर्सेज मिलते हैं कि मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं, या फिर वो अब मैं अपने स्किल से या अपनी नॉलेज से कुछ कर पाऊं, रिसर्च में कुछ कर पाऊं. आई जस्ट वांट टू गिव बैक टू दिस मगर सोसाइटी. सिविल सर्विसेज आपको नॉलेज के लिए तो देता नहीं है, ठीक है, कि आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या समथिंग. दे आर मतलब वो जो पॉलिसी आएगी उसको इम्प्लीमेंट करना है, और सबसे कम शायद वहीं पे हम दे सकते हैं अपनी सिविल मतलब सोसाइटी को, ठीक है, सिविल सर्विसेज बन के, ठीक है. जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम, तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने तुरंत स्टार्ट कर दिया था एग्जाम, ठीक है, और मैंने 3 साल मतलब प्रिपरेशन की, और उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि देयर सम गैप, तो मैंने मास्टर्स कर लिया. मैंने मतलब 3 साल के गैप के बाद मास्टर्स स्टार्ट किया, और उसके बाद मतलब फिर इधर एसएससी में मेरे बहुत सारे जॉब्स लग गए, तो कहीं गया मुझे समझ में नहीं आया, छोड़ के चला आया. देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स, इनकम टैक्स एंड एफसीआई एंड पोस्ट ऑफिस, देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब, मुझे कहीं समझ में नहीं आया, ठीक है. तो मैं फिर से आके मैंने क्या किया, स्टार्ट किए पीएचडी अपनी. जेआरएफ शायद मैं पीजी में ही हो गया था, तो मैंने पीएचडी स्टार्ट की, सोचा कि फिर से सिविल सर्विसेज देते हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि एक सोशल प्रेशर था कि सिविल सर्विसेज की जॉब सबसे सिक्योर जॉब, सबसे पावरफुल जॉब है, और उसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. बट जब मैंने गो डीपर डाउन, और एज भी उसमें मतलब हाँ एग्जैक्टली, तो आपके फिनोमेना चेंज होते हैं, ठीक है. एट दिस एज प्रायोरिटीज भी चेंज होती हैं. जब हम इस एज पे जो तुम सोच रही हो, शायद जरूरी नहीं है कि तुम आगे जाके भी यही सोचो, ठीक है. तो सोसाइटी को देने का एक जो पर्पज है वो काफी पर्सनल होता जाता है एज बढ़ने के साथ में, ठीक है. वो डिफरेंट भी होता जाता है कि हम दूसरे तरीके से दे सकते हैं, सिर्फ सिविल सर्विसेज एक वो नहीं है.
क्या अंदर से इच्छा है? मैं मानता हूँ कि मैं अगर अनसक्सेसफुल रहा सिविल सर्विसेज में, ठीक है, मैंने मतलब दूसरे एग्जाम्स में सब रहा, मगर उसमें मुझे अंदर से समझ में आ गया कि मुझे नहीं करना है ये अब, कुछ समय के बाद, कि इट्स नॉट फॉर मी। और ये यहाँ पे समझने में एक बहुत देरी है बच्चों में, कि अपने टाइम के, अपने एज के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स हम सिर्फ उन किताबों को पढ़ने में लगा देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, और एक अपने आप को सिर्फ एक एग्जाम। सिविल सर्विसेज क्या है, जब मैंने सीखा कि द मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स टू राइट ए आंसर, नो क्रिटिकल थिंकिंग, नो इनोवेशन, नथिंग। हम I will note down this line, sir. तो हम कितना अच्छा आंसर लिख सकते हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो वो जिसमें जो अच्छा होता है, इंजीनियरिंग के बच्चे अच्छे होते हैं इसमें, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट अच्छे होते हैं क्योंकि उन्होंने वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स उसमें दिया, तो वो अच्छा करते हैं। ठीक है। सोशल साइंस के स्टूडेंट्स, दे आर क्रिटिकल थिंकिंग, तो वो एक जैसा आंसर कभी लिख ही नहीं सकते। और टीचर्स को क्या चाहिए कॉपी चेक करने वाले को? एक अच्छा मैनिपुलेटिव आंसर इन द आई एस सिविल सर्विसेज कॉपी, वो उसका फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं। 20 बुक्स मैक्सिमम किसी भी एस्पायरेंट के लिए पर्याप्त है, सफिशियंट है, बट उसको अच्छा मैनिपुलेशन आना चाहिए अपने आंसर राइटिंग का। मैं जब कॉपियां मतलब चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ दे आर वेरी एवरेज क्वेश्चंस, मगर जिसका अच्छा फॉर्म है, मेरा माइंडसेट जिसको वो, मैं उसको अच्छे मार्क्स दे दूंगा, वो सिविल सर्विसेज की कॉपी हो या मैं ग्रेजुएशन की अच्छी कॉपी हो। Hmm. मगर उसमें इनोवेटिव दिमाग है? नहीं है। कुछ क्रिटिकल थिंकिंग है? नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आती है? रिसर्च में आपकी फ्रीडम से। आप कितना रिसर्च करते हैं अपनी, अपने दिमाग को खोल के, तब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और उससे डेवलप होती है। तो सिविल सर्विसेज इज समथिंग नॉट फॉर द क्रिटिकल थिंकर, दे आर ए ग्लोरीफाइड क्लर्क्स, कहा जो कहा जाता है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, नहीं सर, मैं बट एब्सोल्युटली आपकी बात समझ रही हूँ। भारत में सिविल सर्विसेज को बहुत फ्यूडल बना दिया गया है, और एक वो सोशल है, मतलब एक ग्लोरीफाई किया गया सोशल। अभी तो सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाने लगा, उससे पहले दूसरे तरीके से किया जाता था कि आईएएस बन जाओगे, एक जिले के राजा हो जाओगे, यही सब सिखाया जाता था ना, जी लेकर आ जाए, एब्सोल्युटली यस। है ना। करप्शन के आपके पास अधिकार होंगे, आप आपके पास मतलब पैसे खर्च, गवर्नमेंट के पैसे खर्च करने के आपके सिग्नेचर से निकलेंगे, यही सब तो सिखाया जाता था। इसीलिए हर कोई सिविल सर्विसेज करना चाहता था। तो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ डेवलप होगी? बच्चे एक 4 10 बाई 10 के कमरे में सिर्फ मैनिपुलेशन सीख रहे हैं आंसर राइटिंग का, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वहीं पे खत्म हो जा रही है। इसीलिए कोई डेवलपमेंट नहीं है, इसीलिए वो फ्यूडल बन गई, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी में भारत में सबसे ज्यादा कमियां आ गई। और वो एक दूसरा एक सिस्टम और बन गया कि उनके ग्रुप बन गए, तो वो अपने आप में इतना स्ट्रांग पावर स्ट्रक्चर बन गया है कि वो सबको ओवर रूल कर रहा है। भारत में एजुकेशन सेक्टर को क्यों ब्यूरोक्रेसी रूल कर रही है? एजुकेशन सेक्टर को बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए था, बिल्कुल अलग। उसकी अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए थी, उसके डिसीजन मेकिंग खुद के होने चाहिए थे। मगर भारत में एजुकेशन सेक्टर के डिसीजंस कौन ले रहा है? टॉप ब्यूरोक्रेसी ले रही है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है ग्राउंड लेवल पे। एक प्राइमरी लेवल पे टॉप की ब्यूरोक्रेसी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती है एक उसके लोकल प्रॉब्लम्स को जाने बिना, जहाँ का हम्म। सोशल स्ट्रक्चर ही अलग है। तो ये प्रॉब्लम, और पूरा एक एक तरीके का सिस्टम हर स्टेट में, हर गांव में, जबकि भारत में हर जगह का अलग सिस्टम है, हर का। एक्चुअली तो ये रीजन रीजन पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है, स्टेट मैं तो बोर्ड्स डिफरेंट है। हाँ, मैं इस ऑटोनॉमी का समर्थक हूँ कि एक लोकल लेवल पे जो गांव में स्कूल है उसकी अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। एजुकेशन से हम ठीक है, हम करिकुलम डेवलप कर सकते हैं ऊपर लेवल पे, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस टीचर्स पे कितनी ज़्यादा डाल दी गई है। वो अगर कोई क्रिएटिव टीचर है, पढ़ाना भी चाहे तो नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि हर चीज़ पहले से तय है उसको क्या करना है, मार्कशीट देखी नहीं ना। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, मगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शायद चेंजेस आए, तो मैं मतलब 40 ईयर्स देख रहा हूँ, मतलब 2040 तक अगर ये टाइम फ्रेम मानो, तो शायद चेंजेस आए। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ एनईपी को लेके, और अगर चेंजेस आए तो बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे एनईपी की वजह से।
हाँ, बट उसको रिजिड नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी से दूर होना चाहिए उसको। हमें पूरी तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम से अलग करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। ऑटोनॉमी से आईआईटीज को सिर्फ हम आईआईटी जो आईएम को ऑटोनॉमी दे रहे हैं मगर उनके बजट को कम कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा ना। हम्म। अपने ऑटोनॉमी जो दिक्कतें हैं वो शायद कुछ समय बाद ठीक हो जाएं। अ, ओवरकम किए जा सकते हैं विद टाइम। हाँ, अभी टाइम ऑटोनॉमी अपने आप में मतलब सुधार ला सकती है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी उसके लिए ड्रास्टिक साबित हुई। मैं जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लूंगा कि वहाँ ऑटोनॉमी थी और उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उसको खराब किया उसकी ऑटोनॉमी नहीं, वो ये हायरार्किकल सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। ओके। और तो उसके अपने मतलब तो सर क्या एक मिडिल ग्राउंड नहीं, एक मिडिल ग्राउंड क्या नहीं मिडिल ढूंढा जा ग्राउंड हो सकता सकता है, कि मिडिल ग्राउंड होता है, मिडिल ग्राउंड हो सकता है। जैसे यूजीसी है तो वो सिर्फ एक सिस्टम को एक मतलब सिर्फ वो करे, मतलब राय दे या फिर सिर्फ ये बताए कि क्या होना चाहिए, बट उस पर इम्प्लीमेंट ना करे। हेलो। हाँ जी। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था सर, जो बहुत देर से मेरे मन में था। हम्म। ये लेके वी कैन एंड द सेशन टुडे। सर, इंडियन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोलिए, इंडियन प्रमोशन सिस्टम्स बोलिए, बहुत ज्यादा ही रिजर्वेशन बेस्ड है दैन कंपेयर टू मेरिटोक्रेसी। मैं एक आई कौन सी IIT का था, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द लाइक सिटी, बट इट वाज एन IIT डेटा, IIT मैथमेटिक्स की एंट्रेंस एग्जाम की वो थी, लिस्ट थी जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स और किन किन को इनटेक, किन किन को एडमिशन में प्रोसेस में लिया गया था, वो सब था। Students from reserve class, they had received in negative marking, they had received marks in negative marking, फिर भी उनका एडमिशन हो रहा है इन इंस्टीट्यूट्स में। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट, आई एम एब्सोल्युटली नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशंस, पर क्या आपको ये नहीं लगता कि एक स्ट्रेटा को, एक फैक्शन को अपलिफ्ट करने के चक्कर में हम अपने मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स के साथ, अपने मेरिटोक्रेटिक स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा अनफेयर हो जाते हैं? आप एक इक्वालिटी या इक्विटेबिलिटी लाने के चक्कर में आप Equality is not a problem and I think it's a very sensitive topic। और मैं रिजर्वेशन को एक तरीका है सोशल जस्टिस को फॉर्म करने का या उसको मतलब प्राप्त करने का इंडियन सोसाइटी में। इसके अलावा और जैसे फॉरेन में अफर्मेटिव एक्शंस हैं जहाँ पे पर क्या सर ये एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम हम स्कूलिंग लेवल पे, स्कूल लेवल पे कर सकते हैं। इंस्टिल करते हैं, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है कि हाँ हर किसी के पास वो बेनिफिट्स नहीं होते हैं, वो फैसिलिटीज नहीं होते हैं कि वो लोग स्कूल जा सके, स्कूल जा सके, वहां तक समझ में आता है। पर वहाँ क्या पे उसे समझ में आता है। हायर एजुकेशन में भी आप रिजर्वेशन के थ्रू उस स्टूडेंट को आगे बढ़ाएं? इस पे मैं बहुत मतलब एक मिडिल पाथ लूंगा। एक मतलब मेरा बहुत ज़्यादा जैसे रिजर्वेशन सिस्टम पे नेगेटिव ओपिनियन नहीं है, और वो एक सिस्टम है जो एक जो हिस्टोरिकल जस्टिस है देने का, ठीक है। अगर वो हम नहीं देते हैं उन अंडर प्रिविलेज कास्ट बेस या फिर समथिंग जो भी है, एब्सोल्युटली सर, तो वो बहुत जरूरी है। हाँ, मगर एक कहीं ना कहीं एक लैक रह गया, रिजर्वेशन सिस्टम की अपनी कमियां हैं जो जैसे चाहे मैथ्स डिपार्टमेंट हो वहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम में अच्छे स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, जैसे तुमने बताया कि एक एग्जांपल दिया। और अगर पहुंच भी जाते हैं, ठीक है, तो वो उस सिस्टम में को वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें कोप नहीं कर पाते हैं। हाँ, जिससे जो मतलब रिजर्व अनरिजर्व क्लास के बच्चे हैं उनको एक लगता है कि मेरी सीट चली गई इनकी वजह से। तो तरीका
इसका क्या होना चाहिए, इस पे बहुत सारे रिसर्च अवेलेबल हैं, मगर कोई भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है कि इसका सिस्टम और क्या चेंज करें। क्योंकि ये एक पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दा है, ठीक है, ये हमेशा पॉलिटिक्स आ हम्म। जाती है। बट इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें एक चेंजेस लाने ही पड़ेंगे अपने रिजर्वेशन सिस्टम में, जैसे यूएस ने और यूयू ने लाए अपने अफर्मेटिव एक्शंस के। दूसरा, जो प्रिविलेज्ड हैं, वो कई तरीके के प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं सोसाइटी में। एक फाइनेंस हम्म। रिसोर्सेस की प्रिविलेज, ठीक है, मेरिट मेरिट आती है रिसोर्स से, ठीक है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिसोर्सेस प्रोवाइड करा के, कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि रिसोर्सेस मिले। मेरिटोक्रेसी, जितने भी मैंने रिसर्च मेरिटोक्रेसी पे देखे हैं, वो ऑल दे ऑल लिंक्ड विद द रिसोर्सेस। एक अच्छी कोचिंग हम्म। इंस्टीट्यूट किसी को भी मतलब मेडिकल का वो बना सकती है, ठीक है। तो सेंसिटाइजेशन ऑफ द मतलब इंस्टीट्यूट्स ये भी होना चाहिए। और जो कोचिंग सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा लैक है। भारत में कोचिंग सिस्टम इज समथिंग लाइक डिजास्टर फॉर इंडिया। वो वहीं पे ही एक गैप डेवलप कर देता है। जिसके पास 3 लाख रुपए हैं वो एक अच्छा स्टूडेंट प्रिपेयर कर देगी, जिसके पास 3 लाख नहीं है वो नहीं डेवलप कर पाएगी। तो ये गैप है। इस पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जरूरत है, और यही सोशल साइंस का रिसर्च है जिस पे गवर्नमेंट काम नहीं करना चाह रही है। इस पे एक पर्टिकुलर रिसर्च होना चाहिए और एक फेज वाइज लागू करना चाहिए कि भारत में रिजर्वेशन सिस्टम को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। उसमें एक बहुत गैप है। कहीं ना कहीं मतलब एक राइवलरी क्रिएट हो रही है दोनों उसमें। जो अंडर प्रिविलेज जनरल का कास्ट का वो है, अंडर प्रिविलेज है, ठीक है, अभी रिजर्वेशन हम्म। दिया गया, मगर उसका तरीका रिजर्वेशन नहीं था कि 10% मतलब अंडर पुअर उसको दिया। उसका तरीका रिजर्वेशन नहीं था, उसको कुछ और तरीके से सीट्स बढ़ा के या फिर समथिंग कुछ और कर सकते थे। तो इस पे मतलब हर तरीके के अपने कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस पे मुझे नहीं लगता कि किसी को मतलब खास तौर से हम्म। मतलब अनरिजर्व क्लास को ये सोचना नहीं चाहिए कि इट्स अबाउट द इकोसिस्टम, ठीक है। वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम हमेशा से जैसे यूरोप में है या यूएस में है, वो मल्टी कल्चरल अप्रोच अपनाते हैं। वो बाहर के स्टूडेंट्स यस को सर। भी लेते हैं, मतलब हर तरीके के हम्म। इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं। मगर भारत में एक सिस्टम पता नहीं कहाँ से ये आ गया कि मतलब एक दुश्मनी क्रिएट हो रही है, मतलब राइवलरी क्रिएट हो रही है हर क्लास के बीच में। हम्म। सेंसिटाइज नहीं हुए या कल्चरल मतलब ठीक है, भारत में कल्चरल डाइवर्सिटी है, कास्ट डाइवर्सिटी है, ठीक है, कास्ट हम्म। डाइवर्सिटी में भी कल्चरल डाइवर्सिटी इंक्लूडेड है। तो वो एक डाइवर्सिटी को हमने एज ए राइवलरी लिया और वो क्रिएट किया रिजर्वेशन ने। उसमें सबसे बड़ा माध्यम ही राइवलरी का रिजर्वेशन बन गया। और वो मतलब एक जायज ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि किसी को अगर अच्छे अधिकार मिल रहे हैं तो वो अपने आप को मतलब उस दूसरे तरीके का जनरल कास्ट का बच्चा उससे से अपने आप को राइवलरी क्रिएट कर रहा है, एससी कास्ट का बच्चा ओबीसी से समझ रहा है, एसटी का सबसे लगता है कि वो सबसे ज्यादा प्रिविलेज है, जबकि एसटी क्लास की प्रिविलेज मतलब सोशल प्रिविलेज सबसे कम है। तो इसके बीच में एक मतलब हम शायद हम लोगों की स्टडी बहुत कम रही, और इसमें सबसे बड़ी फॉल्ट थी पॉलिटिकल सिस्टम की। वो एक सिस्टम बन गया उसका पॉलिटिकल वोट बैंक का, जिसने रिजर्वेशन सिस्टम जो इसकी इम्पोर्टेंस थी वो खो दी। वो एक वोट बैंक का उसमें बन गया। क्या होना चाहिए कि हायर एजुकेशन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन पे छोड़ देना चाहिए। इस पे मेरा ओपिनियन बहुत ही मतलब वेग है। वेग इन द सेंस कि डेटा नहीं अवेलेबल है कि मैं इस पे कोई ओपिनियन दे पाऊँ, क्योंकि हर स्टेट की अपनी रिजर्वेशन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आईआईटीज की रिजर्वेशन की अलग प्रॉब्लम्स हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिजर्वेशन की अलग प्रॉब्लम्स हैं। छोटे शहरों में जाओगे रिजर्वेशन की अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो अलग अलग जगह पे हर स्टेट में कल्चरल से लेके हर तरीके की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको हम एक डायमेंशंस में नहीं दे सकते। हाँ, मगर अनरिजर्व क्लास में बच्चों को मतलब उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल लग सकता है कि उनके साथ ये इकोसिस्टम फेयर नहीं है। बट
अगर फेयर नहीं है, अगर वो उनमें, मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, अगर वो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो उस इकोसिस्टम को अपने अकॉर्डिंग डेवलप करना पड़ेगा उनको, उस तरीके से ना सोच के। क्योंकि अनजस्टिस बहुत डिफरेंट तरीके का है, किसी के पास पैसे का अनजस्टिस है, किसी के पास सोशल अनजस्टिस है, किसी के पास एजुकेशन का अनजस्टिस है। तो उसको उस तरीके से उनको सोचना नहीं चाहिए, उसको पॉजिटिव वे में सोचना हम्म, चाहिए कि वो कैसे अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं। हम्म, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मतलब डिफरेंट तरीके से अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि सबके बहुत कम अपॉर्चुनिटी हैं और ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। तो इसको सोल्यूशन शायद होता तो पॉलिटिशियंस ने अभी तक इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये इंडियन कल्चरल फेनोमेना है जो इंडिया में शायद, मगर फिर भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, रिजर्वेशन में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और शायद और कोई सिस्टम भी नहीं है कि कैसे एक समानता लाई जाए। मेरिटोक्रेसी की अपनी समस्याएं हैं। हम्म, मतलब जैसे तुमने कहा कि मेरिटोक्रेसी को हम वो कर देते हैं, मगर मेरिटोक्रेसी भी तो कैसे डेवलप हो रही है, रिसोर्सेस से, हम्म, है ना, जी। फाइनेंस से। तो अगर मेरिटोक्रेसी का तो मेरिटोक्रेसी के दो माध्यम है, एक आपका खुद का दिमाग, वो दिमाग डेवलप कैसे हुआ, क्योंकि आपके पास संसाधन अवेलेबल थे। ठीक है, जिसके पास जितने संसाधन, उसके बाद जो एक्चुअल बहुत अच्छा माइंड है वो बहुत कम है, हम्म, वो डेवलप होता है आपके संसाधनों से। तो मेरिटोक्रेसी में इंडिया ने अगर अपने संसाधन, अपने रिसोर्सेज अच्छे डेवलप किए होते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। भारत में रिसोर्सेज बहुत कम डेवलप किए गए और फिर संसाधनों का बंटवारा एक समस्या बन गई कि डिवीजन कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्सेज का। तो ये इस पे साइकोलॉजिकली हम्म, इंडियन सिस्टम को बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये फिनोमेना कल्चरल और सोसाइटी के लिए एक बहुत ही निगेटिव सेंस में काम कर रहा है। जो उनके बीच में जिस कंपटीशन को हमें ध्यान रखना चाहिए था, उसकी जगह पे कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन हो जा रहा है, जो एक निगेटिविटी है दोनों के लिए। मतलब वो एक अच्छा फिनोमेना नहीं है भारत के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जैसे यूरोप ने काम किया, अमेरिका ने काम किया कि ब्लैक्स के साथ बहुत ही वैसा व्यवहार था, मगर उनका अफर्मेटिव एक्शन अच्छा काम किया और वहां पे चीजें बदली। जो क्राइम में जी। ब्लैक्स हमेशा क्राइम में और उसमें इन्वॉल्व थे, तो चीजें बदली। 1970 में देखो, एक भी ब्लैक उनकी मूवीज में नहीं था, हम्म, कभी नहीं दिखता था। बट चेंजेस, चीजें बदली, वो अफर्मेटिव एक्शन से हुआ। तो वो अफर्मेटिव एक्शन हम अपने यहाँ वोट बैंक की, उनके यहाँ वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं हुए थे, भारत में वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हो गई। और जो जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स, ये जो फेनोमेना है, वहां पे भी आपस में बहुत से ज्यादा राइवलरी है, एक मतलब एक तरीके का सोशल गैप है ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में, वाइट सुपरमेसी है, ब्लैक्स मतलब वो थे, मगर फिर भी चेंजेस आ रहे हैं। तो भारत में भी उस पर काफी रिसर्च करके सोचना पड़ेगा, वरना ये मतलब एक सोशल अनरेस्ट का काम कर रहा है भारत में, तो उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। बहुत कुछ डिस्कस किया सर हमने। इट वॉज एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू टुडे। थैंक यू सो मच प्राची। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर having us. Thank you so much.